Thinkers, Beliefs and Buildings. Theme 4, Cultural Developments, circa 600 BC to 600 CE. Guys, I repeat, with the start of every chapter I'm repeating again and again, please read your NCERTs again and again. Okay, in this chapter we shall go on a long journey across 1,000 years to read about philosophers and their attempts to understand the world they inhabited. We will also see how their ideas were compiled as oral and written text as well as expressed in architecture and sculpture. These are indicative of the enduring influence these thinkers had on people. While we will be focusing on Buddhism, it is important to remember that this tradition did not develop in isolation. There were several other traditions, each engaged in debates and dialogues with the others. हम लोग बुद्धिज़्म के ऊपर थोड़ा सा लाइट देंगे उनकी थिंकिंग के बारे में. एंड प्लीज़ रिमेंबर हियर कि बुद्धिज़्म आइसोलेशन में डेवलप नहीं हुआ है. बुद्धिज़्म के जो आइडियाज़ है उसका दूसरी बिलीफ सिस्टम का इन्फ्लुएंस उसका बुद्धिज़्म पे पड़ा है, बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस दूसरों पे पड़ा. इट वॉज अ टू वे स्ट्रीट. द सोर्सेज दैट हिस्टोरियंस यूज़ आर ऑफ कोर्स सोर्सेज आर दी ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस. मैं हर वीडियो में हर चैप्टर के उसमें बोलती हूँ कि प्लीज़ गाइस सोर्सेज अच्छे से करके जाना. यहाँ पर जो सोर्सेज हमें मिलते हैं वो है इंक्लूड करते हैं बुद्धिस्ट एंड जैना एंड ब्राह्मणिकल टेक्स्ट as well as large and impressive body of material remains including monuments and inscriptions. हम सांची स्तूपा के बारे में जानती हैं, बुद्धिस्ट श्राइन्स हो गए या बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स हो गए बुद्धा के. all of these things. Among the best preserved monuments of the time is the stupa at Sachi, which is a major focus in this chapter. ये sculpture आप ये figure देखिए, it is a sculpture of from Sachi, and this figure is of Shahjahan Begum. ये शाहजहां बेगम कौन है? We'll read in the next video. Sachi. Sachi in the 19th century, the most wonderful ancient buildings in the state of Bhopal are at Sachi, Kanakhera, a small village under the brow of a hill some 20 miles northeast of Bhopal, which we visited yesterday. We inspected the stone sculptures and statues of the Buddha and an ancient gateway. The ruins appear to be the object of great interest to European gentlemen. Major Alexander Cunningham stayed several weeks in this neighborhood and examined these ruins most carefully. सबसे अच्छी एंशियंट बिल्डिंग्स हमें मिल सकती है भोपाल में, सांची कानखेरा में. एक छोटी सा गांव है सांची कानखेरा, भोपाल के पास में है. एंड वी विजिटेड येस्टरडे. ये किसने लिखा है? फ्रॉम शाहजहां बेगम, नवाब ऑफ भोपाल, रूल्ड 1868 to 1901. ताज उल इकबाल तरीक भोपाल, अ हिस्ट्री ऑफ भोपाल, ट्रांसलेटेड बाय H.T. Barstow, 1876. So this is an excerpt from the book written by शाहजहां बेगम. ओके, तो इसमें कहते हैं कि उन्होंने कुछ स्टोन स्कल्पचर्स को इंस्पेक्ट किया जिसमें बुद्धा के स्टैचूज़ मिलते हैं, कि एंशिएंट गेटवे दिखा है. ये जो रूइंस हैं ये ग्रेट इंटरेस्ट अपीयर करते हैं फॉर यूरोपियन जेंटलमैन. एंड मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, इफ़ यू रिमेंबर द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ही स्टेड देयर सेवरल वीक्स. इस नेबरहुड में उन्होंने हर चीज़ को एग्जामिन करा, रूइंस को, एंड ही टुक ड्राइंग्स ऑफ द प्लेस, डिसाइफर्ड द इंस्क्रिप्शन एंड बोर्ड शाफ्ट्स डाउन दीज डोम्स. द रिजल्ट वॉज डिस्क्राइब्ड बाय हिम इन एन इंग्लिश वर्क एंड सो ऑन. 19th century Europeans were very interested in the stupa at Sanchi. In fact, the French sought Shahjahan Begum's permission to take away the eastern gateway, which was the best preserved, to be displayed in a museum in France. For a while, some Englishmen also wanted to do the same, but fortunately both the French and the English were satisfied with carefully prepared plaster cast copies, and the original remained at the site part of the Bhopal state. देखिए 19th सेंचुरी में जो यूरोपियंस इंडिया में थे वो सांची में एक जो स्तूपा डिस्कवर हुआ था उसमें बहुत इंटरेस्टेड थे. तो जो फ्रेंच थे, जो इंग्लिश थे, उन्होंने कोशिश करी थी कि वो शाहजहां बेगम उस तक जो भोपाल की नवाब थी उनसे परमिशन ले सके कि वो ये सांची का जो गेटवे है उसको ले जाकर अपने यहाँ पर म्यूज़ियम में लगा सके फ्रांस में. ऐसा ही इंग्लिशमैन भी, ब्रिटिशर्स भी ऐसा ही चाहते थे, बट दे वर डिनाइड. एंड उनको इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल गेटवे उनको उस गेटवे का प्लास्टर कास्ट कॉपी भेज दिया गया था, एंड ओरिजिनल जो थी वो भोपाल में ही रही. Rulers of Bhopal, Shahjahan Begum and her successor Sultan Jahan Begum provided money for the preservation of the ancient site. No wonder then that John Marshall dedicated his important volumes on Sanchi to Sultan Jahan. She funded the museum that was built there as well as the guest house where he lived and wrote the volumes. तो ये इन रूलर्स की वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने डिनाई करा कि आज इंडिया के पास सांची स्तूपा जैसी एक बहुत ही यूनिक एंड इतनी इम्पोर्टेंट साइट है.
उन्होंने मना करा कि वो ओरिजिनल गेटवे को नहीं ले जा सकते। इसी वजह से जॉन मार्शल ने अपने बहुत सारे वर्क्स जो है वो सुल्तान जहान को डेडिकेट करे हैं, क्योंकि सुल्तान जहान और शाहजहां बेगम इन दोनों रूलर्स ऑफ भोपाल ने बहुत मनी प्रोवाइड करे ताकि इस एंशियंट साइट को वापस से प्रिजर्व कर सके, इसको थोड़े से रिपेयर वगैरह वर्क करके वापस से स्टैंड कर सके। उन्होंने एक म्यूजियम फंड करा यहाँ पर, एंड जो गेस्ट हाउस में जॉन मार्शल रह रहे थे उसको भी उन्होंने ही फंड करा था। If the stupa complex has survived, it is in no small measure due to wise decisions and to good luck in escaping the eyes of railway contractors, builders and those looking for finds to carry away to the museums of Europe. हमने पहले भी पढ़ा है कि कैसे हड़प्पा में ब्रिक रॉबर्स जो थे वो हड़प्पा की सारी ब्रिक्स को चुरा कर ले गए थे रेलवे ट्रैक बनाने के लिए। तो इट वॉज बाई गुड लक कि सांची में जो ये स्तूपा ये प्रिजर्व हो पाया है, क्योंकि ये लोगों की आंखों तक नहीं पड़ा एंड यहाँ के रूलर्स ने भी इसके प्रिजर्वेशन के लिए हेल्प करी है। One of the most important Buddhist centers, the discovery of Sanchi has vastly transformed our understanding of early Buddhism. Today, it stands testimony to the successful restoration and preservation of a key archaeological site by the Archaeological Survey of India. ये फिगर देख लीजिए, ग्रेट स्तूपा सांची। अगर हम दिल्ली से भोपाल बाय ट्रेन ट्रैवल करते हैं तो हमें ये स्तूपा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है ऑन टॉप ऑफ अ हिल। अगर आप गार्ड से रिक्वेस्ट करेंगे तो ट्रेन 2 मिनट के लिए स्टेशन पे रुक भी जाती है। आप ट्रेन से उतर के सांची स्तूपा चढ़ सकते हो, वहाँ पर देख सकते हो। ये सांची स्तूपा जो है ये एक लार्ज माउंड जैसा है यहाँ पर, और अदर मॉन्यूमेंट से एक टेम्पल यहाँ पर बिल्ड करा हुआ है इसके आसपास 5th सेंचुरी में, तो हम ये स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। बट वॉट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मॉन्यूमेंट? क्या है ये, क्यों बनाया गया था, इसके अंदर क्या है, इसके आसपास एक स्टोन क्यों है, इसमें ये जो एलिमेंट्स है वो कौन है, इसके लिए पेमेंट किसने करा, ये कब डिस्कवर हुआ, ये सारी स्टोरी जो है हमें आगे पढ़ेंगे, ये सांची की अनकवर करेंगे। और हमें बहुत सारे टेक्स्ट, स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर इंस्क्रिप्शन से टेक्स्ट को कलेक्ट करके तब हम समझ पाएंगे इसकी पूरी कहानी क्या है। The background, sacrifices and debates. The mid-1st millennium BCE is often regarded as a turning point in world history. Mid-1st millennium BCE मतलब 500 BC के अराउंड, क्योंकि इस टाइम पर हमें ग्रेट थिंकर्स की इमर्जेंस देखिए, जैसे ज़ाराथुस्त्र इन ईरान, कॉन्गजी इन चाइना, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल इन ग्रीस, महावीरा और गौतम बुद्धा इन इंडिया एंड अदर्स। इन्होंने कोशिश करी टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड द कॉस्मिक ऑर्डर। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम जब न्यू किंगडम्स और सिटीज़ डेवलप हुई, एक नया सोशल एंड इकोनॉमिक वे ऑफ लाइफ डेवलप हुआ, और वेराइटी ऑफ वेज गंगा वैली में अलग अलग तरीके से लाइफ डेवलप हुई। तो इन थिंकर्स ने अटेम्प्ट करा ये समझने के लिए कि ये कैसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, एंड हाउ टू गेट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड टू अ मोर यूनिवर्सल सिस्टम एंड ऑर्डर। द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन, बहुत सारे प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन ऑफ थॉट, रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिस थे जिसमें इंक्लूड होते हैं वैदिक ट्रेडिशन, जैसे कि ऋग्वेदा जो कि 1500 से 1000 BC के बीच में कंपाइल हुई। ये जो ऋग्वेदा है इसमें बहुत सारे हिम्स हैं, बहुत मंत्रास हैं, बहुत वर्सेस हैं, जो कि बहुत सारे डीटीज जैसे अग्नि, इंद्र और सोम को प्रेस कर रहे हैं। इसमें से बहुत सारे हिम्स जो है वो चांट किए जाते थे जब सैक्रिफाइसेस परफॉर्म होते थे, और लोग जो थे वो अपनी गुड लाइफ और कैटल, सन्स, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह के लिए इन रिचुअल्स में प्रे करते थे, इन हिम्स के थ्रू गॉड से प्रे करते थे कि प्लीज़ प्रोटेक्ट देम, उनको ठीक रखना। पहले ये सैक्रिफाइसेस जो थे वो कलेक्टिवली परफॉर्म होते थे, बाद में 1000 BC से 500 BC ऑनवर्ड से कुछ जो थे वो हेड्स ऑफ हाउस होल्ड ही परफॉर्म करने लगे, और फिर डोमेस्टिक यूनिट में परफॉर्म होने लगे, मतलब इंडिविजुअल हाउसेस फिर इन पूजा को परफॉर्म करने लगे। मोर एलैबोरेट सैक्रिफाइसेस होने लगे जैसे राजसूय एंड अश्वमेध, एंड दे वर परफॉर्म्ड बाय चीफ्स एंड किंग्स, जो कि ब्राह्मण प्रीस्ट के ऊपर डिपेंड करते थे कि वो ही आकर इन रिचुअल को परफॉर्म करें। अ प्रेयर टू अग्नि, यहाँ पर 2 वर्सेस है ऋग्वेदा से जिसमें अग्नि गॉड को प्रे किया जा रहा है, जो कि फायर है, गॉड ऑफ फायर है, और ये ऑफन आइडेंटिफाई कर जाते हैं सैक्रिफिशियल फायर से, ओके, जिसमें ऑफरेंस दी जाती है। तो हम देखते हैं, हमने देखा है कि आग में आहुति देते हैं हम लोग, घी डालते हैं एंड कितनी सारी चीज़ें डालते हैं, तो इसका मतलब हम फायर में ये हम ऑफर कर रहे हैं अग्नि को, गॉड ऑफ फायर को। और हम इसलिए भी इसमें देते हैं, फायर में देते हैं, ताकि वो गॉड ऑफ फायर जो है इसको बाकी डीटीज तक भी पहुंचा सके। तो इसमें ये क्या 2 हिम्स हैं, ब्रिंग ओ स्ट्रॉन्ग वन दिस सैक्रिफाइस ऑफ आर्स टू द गॉड्स, ये जो हम आपको सैक्रिफाइस दे रहे हैं, प्लीज ब्रिंग दैट टू आर गॉड्स। ओ वाइज वन एज अ लिबरल गिवर बेस्टो ऑन अस, ओ प्रीस्ट अबंडेंट फूड अग्नि ऑब्टेन बाय सैक्रिफाइसिंग माइटी वेल्थ फॉर अस। तो ये प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ बेस्टो अपॉन अस गुड हेल्थ, प्रोटेक्शन एटसेट्रा, और हमारी इस ऑफरिंग को, प्रेयर को आप बाकी डीटीज तक भी पहुंचाओ।
Procure, O Agni, forever to him who prays to you the gift of nourishment, the wonderful cow. May a son be ours, offspring that continues our line, etc. तो वो प्रे कर रहे हैं कि हमें गाय देना. एक गाय देने से मतलब है कि प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी हमें देना ताकि हमारा काम चलता रहे, हमें एक अच्छा सा बेटा हो जाए जिससे हमारी लीनिएज जो है वो कंटिन्यू रहे एंड एक्सेट्रा. तो वो अग्नि को प्रे कर रहे हैं. ये वर्सेस जो थी ये कंपोज की जाती थी एक स्पेशल संस्कृत में जिसे कहा जाता था वैदिक संस्कृत, विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम द स्पोकन संस्कृत. ये ओरली मैन को सिखाई जाती थी. न्यू क्वेश्चंस, बहुत सारे आइडियाज़ जो थे वो उपनिषद्स जो है वो 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स होने लगे. तो तब से बहुत सारे आइडियाज़ उपनिषद्स में हमें मिलने लगे और वो ये दिखाते हैं कि लोग जो थे वो क्यूरियस थे. लाइफ का मतलब क्या होता है, हमारी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, हमारी डेथ के बाद हमारी लाइफ कैसी होगी, क्या होगी, हमारा पुनर्जन्म के बारे में, क्या हमारा पुनर्जन्म इसलिए मतलब होता था क्योंकि हमारे पास्ट एक्शंस ऐसे थे. तो ये सारे इश्यूज़, ये सारे क्वेश्चंस जो थे वो पॉपुलर होने लगे और हॉटली डिबेट होने लगे. थिंकर्स जो थे वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे नेचर और अल्टीमेट रियलिटी क्या है हमारी लाइफ की, हमारी एग्जिस्टेंस की. तो ये डिबेट्स हमें हर रिलीजन में देखने को मिल जाते हैं. और भी थे जो कि वैदिक ट्रेडिशन के बाहर से वो पूछते थे कि एक सिंगल अल्टीमेट रियलिटी है कि अलग अलग है, कि व्हाट इज़ द रियलिटी, व्हाट इज़ द ट्रूथ. तो पीपल जो है वो इस सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन को डाउट करने लगे थे या फिर इसकी सिग्निफिकेंस की क्या ये सच में है ज़रूरी जितना बोलते हैं. व्हाट इज़ द रियलिटी, कि यहाँ पर ये जो बोला जा रहा है आप सैक्रिफाइस करो, इतने बड़े बड़े रिचुअल्स करो, पूजास करो, इज़ इट रियली नेसेसरी. डिबेट्स एंड डिस्कशंस, हमें इन लाइवली डिस्कशंस और डिबेट्स जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है और इसमें मेंशन होते हैं कि 64 सेक्ट्स और स्कूल ऑफ थॉट अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट. टीचर्स जो थे वो अलग अलग जगह पर जाकर ट्रैवल करते थे, वो अपने फॉलोअर्स को, जैसे लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि यार उनका धर्म या उनकी बिलीफ जो है वो ज़्यादा वैलिडेटेड है, वो ज़्यादा ठीक है, वो उनकी फ़िलॉसफी या जिस तरीके से वो वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करे विट इज़ बेटर. तो कुटाग्रशाला एक जगह होती थी, कुटाग्रशाला मतलब एक हट होती थी जिसका एक पॉइंटेड रूफ होता था, या फिर यहाँ पर मेंडिकेंट्स मतलब जो जितने भी साधु वगैरह होते थे वो यहाँ पर रुकते थे. सो यहाँ पर कुटाग्रशाला में डिबेट्स होती थी. अगर एक फिलोसोफर अपने राइवल्स को या उसके फॉलोअर को कन्विंस कर पाता था कि यार उसकी फ़िलॉसफी बेटर है, तो सारे उसके राइवल और डिसाइपल जो है वो उनकी फ़िलॉसफी को फॉलो करने लगते थे. तो इस वजह से कोई भी पर्टिकुलर सेक्ट या तो ग्रो हो सकता था या श्रिंक हो सकता था ओवर टाइम, क्योंकि वो फॉलोअर्स फिर वो चेंज कर लेते थे अगर वो कन्विंस कर लेते थे. तो इसमें से बहुत सारे टीचर्स थे जैसे महावीरा, बुद्धा, जो कि वेदा की अथॉरिटी को क्वेश्चन करते थे कि वेदा जो बता रहे हाउ कितना सच है ये, या कितना लेजिटिमेट, कितना ठीक है. वो इन्फेसाइज करते थे इंडिविजुअल एजेंसी को कि आप ग्रुप में कुछ नहीं, आपको जो करना है खुद करना पड़ेगा, यू योर सेल्फ हैव टू सैक्रिफाइस. वो सजेस्ट करते थे कि मेन एंड वुमेन को लिबरेशन के लिए स्ट्राइव करना चाहिए, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस ऑफ वर्ल्डली एग्जिस्टेंस की आपको इस पूरे दुनिया से मुक्त होना है. ये जितने भी मोह है, माया है, द करेक्ट वर्ड्स इफ आई एम यूजिंग, इस मोह माया से मुक्त होकर आपको मोक्ष पाना है. दिस वाज व्हाट दे यूज्ड टू से. ये ब्राह्मणिकल पोजीशन से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में थे, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस जो है वो बाय बर्थ या कास्ट या जेंडर से स्पेसिफाई होती थी. तो एक तरफ तो महावीरा एंड बुद्धा ये कह रहे थे कि यार आप भले ही किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इंडिविजुअली इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा जिससे आप लिबरेट हो सको. और ब्राह्मणिकल बोलते थे कि यार ऐसा नहीं होता है, बाय बर्थ आपकी पोजीशन डिफाइन होती है एंड सो ऑन. तो ये जो थे, ये सेक्ट्स जो थे, ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में थे. Verses from the Upanishads. Here are two verses from Chandogya Upanishad, a text composed in Sanskrit circa 6th century BCE. दो टेक्स्ट कौन से हैं? The nature of the self. This self of mine within the heart is smaller than paddy or barley or mustard or millet or the kernel of a seed or millet. This self of mine within the heart is greater than the earth, greater than the intermediate space, greater than heaven, greater than these worlds. तो ये एक फिलोसफी है जिसमें नेचर ऑफ सेल्फ, ये छंदोग्य उपनिषद में टेक्स्ट जो संस्कृत में कंपोज्ड है उसमें लिखा जा रहा है कि ये जो मैं हूँ, मेरा ये जो नेचर है, मेरी आत्मा है, ये एक छोटे से चावल के दाने से भी छोटी है, या फिर ये मेरा जो सेल्फ है ये पूरी दुनिया, पूरे यूनिवर्स से भी बड़ी है. सो दिस इज़ अ फिलोसफी जो पूरी दुनिया से बड़ी है, पूरे हेवन से बड़ी है. The true sacrifice, this one that the wind that blows, this is surely a sacrifice while moving, it sanctifies all this, therefore it is indeed a sacrifice. तो ये दो वर्सेस उपनिषद से हमें देखने को मिलता है.
How Buddhist text was prepared and preserved. The Buddha and other teachers taught orally through discussion and debate. men and women, perhaps children भी होते थे, ये इन डिस्कशंस को अटेंड करते थे, डिस्कस करते थे, जो उन्होंने सुना अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आगे रखते थे. तो बुद्धा की कोई भी चीज़ जो थी वो लिखी नहीं जाती थी उसकी लाइफ टाइम में. मतलब जब तक बुद्धा थे उनकी पूरी लाइफ टाइम में बुद्धा की किसी भी स्पीच को लिखा नहीं गया. उनकी डेथ के बाद 5th या 4th सेंचुरी BC में जब उनकी डेथ हुई, तब उसके बाद उनकी जितनी भी टीचिंग्स थी उसको उनके डिसाइपल्स ने काउंसिल ऑफ एल्डर्स में कंपाइल करा. सीनियर मॉन्क्स जितने भी थे, वैशाली जो कि पाली या वैशाली है जो प्रेजेंट बिहार में है, यहाँ पर इनकी बुद्धा की टीचिंग्स को कंपाइल करा और इस टीचिंग को बोलते थे तिपितका. लिटरली 3 बास्केट्स टू होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट. मतलब 3 तिपितका 3 मतलब 3 बास्केट्स जिसमें 3 अलग अलग टाइप के टेक्स्ट को होल्ड कर सके. वो सबसे पहले ट्रांसमिट ओरली किए जाते थे और उसके बाद लिखे गए एंड अकॉर्डिंग टू द लेंथ एज वेल एज द सब्जेक्ट मैटर. अब वो 3 पताका तिपितका में क्या है? द विनय पिटिका. इट इंक्लूड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस. विनय पिटिका में रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि जो भी संघ या फिर वर्ल्डली ऑर्डर को रिनाउंस करके एंड मॉन्क बन जाते हैं तो या संघ का हिस्सा बन जाते हैं तो उन्हें उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको अपनी लाइफ कैसे जीना है. बुद्धा की जो टीचिंग्स थी वो सुत्त पिटिका में थे. बुद्धा ने जो कुछ सिखाया फॉर द जनरल मैन, कॉमन मैन, उनकी टीचिंग सुत्त पिटिका में थी. और अभिधम्म पिटिका जो थी वो फिलोसॉफिकल मैटर्स के साथ डील करती थी कि वर्ल्ड कैसा है, एग्जिस्टेंस कैसा है, बर्थ, रीबर्थ एट्सेट्रा. तो ये तीनों पिटिका जो थी इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल टेक्स्ट भी थे. बाद में जैसे जैसे कमेंट्रीज इसके ऊपर लिखी गई टेक्स्ट की, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने इसके ऊपर लिखा, वो क्या सोचते थे इनके बारे में एंड सो ऑन. तो ये 3 पिटिका, प्लीज रिमेंबर, विनय पिटिका, सुत्त पिटिका एंड अभिधम्म पिटिका. बुद्धिज़्म जैसे जैसे नए रीजन्स पे ट्रैवल हुआ, चाइना, जापान, श्रीलंका जैसे रीजन्स पे ट्रैवल हुआ, तो और भी टेक्स्ट है जैसे कि दीपवंश, जिसका लिटरली मतलब होता है क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड, और महावंश मतलब द ग्रेट क्रॉनिकल, ये भी लिखे जाने लगे जिसमें बुद्धिज़्म की रीजनल हिस्ट्रीज़ के बारे में लिखा जाने लगा. तो बुद्धिज़्म कैसे डेवलप हुआ, कहाँ डेवलप हुआ, क्या क्या हुआ उसके डेवलपमेंट में. बहुत सारी ये वर्क्स जो थे इसमें बायोग्राफीज ऑफ बुद्धा भी बुद्धा की बायोग्राफी के बारे में भी लिखा गया था इन बहुत वर्क्स में कि बुद्धा की लाइफ कैसी थी, वो कहाँ गए, कैसे ट्रैवल करा. इनमें से कुछ ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो थे वो पाली में लिखे गए और लेटर वाले जो है वो संस्कृत में लिखे गए. जब बुद्धिज़्म ईस्ट एशिया में स्प्रेड हुआ तो पिलग्रिम जैसे कि फारजियान और शुआनजांग ने चाइना से लेकर वो इंडिया आए ताकि इन टेक्स्ट के बारे में सर्च कर सके, ढूंढ सके और समझ सके. तो इन टेक्स्ट को फिर वो वापस अपनी कंट्री में ले गए जहाँ पर इन्होंने ट्रांसलेट करा बाय स्कॉलर्स. इसको ट्रांसलेट किया गया इनटू देयर लैंग्वेज. इंडियन बुद्धिस्ट टीचर्स भी थे जो वो दूर दूर तक गए, उन्होंने धर्मा को प्रोपगेट करा, उन्होंने इस टेक्स्ट को कैरी करा, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करा ताकि बुद्धा की टीचिंग्स को दूर दूर तक फैलाया जा सके. बुद्धिस्ट के जो टेक्स्ट थे वो प्रिजर्व करे थे उन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट्स में. बहुत लंबे टाइम तक मोनास्ट्रीज में इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया में इसको प्रिजर्व करके रखा गया था. इसके मॉडर्न ट्रांसलेशन जो है वो पाली, संस्कृत, चाइनीज़ और टिबेटन टेक्स्ट में इसको ट्रांसलेट किया गया है. ओके ये बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट है इन संस्कृत 12th सेंचुरी. देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसको प्रिजर्व करा गया है. फैटलिस्ट एंड मटीरियलिस्ट ये हमारा सोर्स है. Here is an excerpt from the Sutta Pitaka describing a conversation between King Ajatasattu, the ruler of Magad, and the Buddha. Do you remember King Ajatasattu? हमने पढ़ा था इसके बारे में चैप्टर नंबर 2 में, इसका मेंशन था सिर्फ. ओके मगध के रूलर थे. एक ओकेजन पे किंग अजातशत्रु जो थे वो बुद्धा को उन्होंने विजिट किया और उन्होंने डिस्क्राइब किया एक अनदर टीचर जो उनका नाम था मखली गोसाला. ओके तो मतलब ये डिस्क्राइब करता है कि किंग अजातशत्रु जब बुद्धा को मिलने गए थे तो एक दूसरे टीचर मखली गोसाला ने उनको क्या समझाया था वो इसको डिस्क्राइब कर रहा है. दो द वाइज शुड होप, मतलब वाइज जो थे उनको होप करना चाहिए, बाय दिस वर्च्यू बाय दिस पेनेंस आई विल गेन कर्मा. तो जो समझदार है वो यही होप करना चाहिए कि मैं ये सारी भक्ति करूँगा, मैं ये पेनेंस करूँगा तो उससे मैं कर्मा, गुड कर्मा गेन करूँगा. और जो फूल है बाय द सेम मीन्स होप टू ग्रेजुअली रिड हिमसेल्फ ऑफ हिज कर्मा, नीदर ऑफ देम कैन डू इट. Pleasure and pain, measured out as it were, cannot be altered in the course of samsara, transmigration. It can neither be lessened or increased, just as a ball of string will, when thrown unwind to its full length, so fool and wise alike will take their course and make an end of sorrow. तो वो यही बोल रहे हैं कि ये जो सुख दुख की जो बातें कर रहे हैं ये ना इंक्रीज़ हो सकता है ना कम हो सकता है, ये ऐसा ही रहेगा. हमें ये समझना पड़ेगा. अगर हम ये सोचें कि मैं अच्छा कर्म कमाऊँ या मैं बुरे कर्म मुझे मिलेंगे अच्छे कर्म, दिस इज़ नथिंग.
और एक फिलोसोफर नेम्ड अजित केसर कंबलन ने क्या उनको सिखाया, वो बोलते हैं देयर इज़ नो सच थिंग ओ किंग एज आर्म्स और सैक्रिफाइस और ऑफरिंग्स, देयर इज़ नो सच थिंग एज दिस वर्ल्ड और द नेक्स्ट। तो एक बोलते हैं कि ये जो आप सैक्रिफाइस, ये ट्रेडिशन, ये रिचुअल कुछ नहीं है, ये जन्म वो जन्म पुनर्जन्म ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब अलग अलग फिलोसफीज़ उनके सामने आई है। ह्यूमन बीइंग इज, ये आगे कंटिन्यू करते कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो 4 एलिमेंट्स का बना होता है और जब वो मरता है तो वो वापस अपने एलिमेंट्स रिटर्न हो जाते हैं। वो एलिमेंट्स है फ्लूइड यानी वाटर, हीट जो है वो वापस फायर के पास ले जाता है, जो विंडी है वो एलिमेंट वापस हवा के पास ले जाता है और उसके जो सेंसेस है वो स्पेस में चले जाते हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं होता। द टॉक ऑफ गिफ्ट इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ फूल, ये जो हम गिफ्ट और इसकी बातें करते हैं मतलब हमें ये कृपा करे, ब्लेसिंग हो, ये सब फूल्स की बातें हैं। एम्प्टी लाई है, फूल्स है, वाइस और फूल जो है वो ऐसे ऐसे मतलब पैदा होते हैं फिर पेरिश हो जाते हैं, ऐसे पूरे ब्रह्मांड में वो मिल जाते हैं, वो डेथ के बाद सर्वाइव नहीं करते, ये पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो ये दो हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट्स हमें मिल रहे हैं, एक मक्खली गोसाला की तरफ से और एक अजित केसर कंबलन की तरफ से। ये जो पहले टीचर है ये बिलोंग करते हैं अजीविकास को। अजीविकास को फेटलिस्ट बोला जाता है, दोज हु बिलीव दैट एवरीथिंग इज प्री डिटरमिन्ड। तो मतलब अजीविका, ये जो मखली गौशाला है, इनका कहना मतलब ये था कि ये जो प्लेजर पेन आप जो बोल रहे हो आप इसको बढ़ाया कम नहीं कर सकते, सब कुछ पहले से डिटर्मिन्ड है, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, जैसा होना है वैसा ही होगा। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं इससे ये करूँगा तो मेरे अच्छे कर्म बनेंगे, मैं ये करूँगा तो बुरा कर्म, उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपके साथ होना है सब कुछ प्री डिटर्मिन्ड है, आपके उससे कुछ नहीं होना है। तो इनको कहते हैं फेटलिस्ट, जो फेट को वो करते हैं कि जो होना है आपकी किस्मत में लिखा हुआ है और सब कुछ पहले से प्री डिटर्मिन्ड है। सेकेंड टीचर जो ये अजित है वो मटीरियलिस्ट कहलाते हैं, वो ट्रेडिशन ऑफ लोकायत्स, अजीविकास एंड लोकायत्स को बिलीव करते हैं, जो मटीरियलिस्ट होते हैं। इनका मतलब ये होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये फेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। इस ट्रेडिशन के टेक्स्ट जो थे वो सर्वाइव नहीं हो पाए मटीरियलिस्ट या लोकायत्स के, तो हमें इनके बारे में बहुत कम पता है, या जो भी पता है वो दूसरे ट्रेडिशंस ने अगर इनके बारे में लिखा हुआ है उससे ही पता है। ओके, बियॉन्ड वर्ल्डली pleasures, the message of Mahavira. The basic philosophy of the Jainas is already in existence in North India before the birth of Vardhaman, who came to be known as Mahavira in the 6th century BCE. According to Jain tradition, Mahavira was preceded by 23 other teachers or Tirthankaras, literally those who guide men and women across the river of existence. तो देखिए यहाँ पर जब बात करते हैं हम जैन्स की, तो जब महावीरा का बर्थ हुआ विच वॉज नियरली इन द 6th century BCE यानी कि 600 BC में, उसके पहले ही जैन धर्म वॉज ऑलरेडी देयर इन द सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि बिफोर महावीरा देयर वर 23 अदर teachers. Okay, so the Mahavira is the 24th Tirthankar. They have 24 Tirthankars, and before Mahavira there were 23 other. मतलब Mahavira was the last one, was the last Tirthankar, 24th Tirthankar. Okay, तो birth of Vardhaman was the other name for Mahavira. So it was in the 6th century BC, and before that people were already familiar with the Jain tradition. Okay, so what are Tirthankar? Tirthankar literally means those who guide men and women across the river of existence. मतलब जो लाइफ है उसको जैसे बोलते हैं ना कि जीवन से पार लगाने के लिए. The most important idea in Jainism is that the entire world is animated. Even stones, rocks and water have life. तो Jainism में सबसे important idea यही होता है कि पूरी world इज़ एनिमेटेड, यानी कि स्टोन्स यानी पत्थर, रॉक्स, पानी में भी जान होती है, दे आर ऑल्सो अलाइव, दे ऑल्सो हैव लाइफ इन दैम. सो नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, स्पेशली टू ह्यूमन्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स इज सेंट्रल टू जैन फिलोसफी. तो जैन्स का सेंट्रल पार्ट ये होता है कि नॉन वायलेंस एक तो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अहिंसा इज़ द वर्ड. अहिंसा मतलब किसी को भी हिंसा ना हो, किसी को भी इंजरी ना पहुंच सके. देखिए लिविंग बीइंग्स को, स्पेशली कौन कौन, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स. तो जैनिज्म में आप जब यू शुड नॉट हार्म एनीबडी हु इज़ लिविंग बीइंग, किसी को भी हार्म नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज़ द फिलोसफी ऑफ अहिंसा. अहिंसा परमो धर्म. In fact, the principle of ahimsa emphasized with Jainism has left its mark on Indian thinking as a whole. According to Jain teachings, the cycle of birth and rebirth is shaped through karma.
तो जैनिज़्म में आपको क्या सिखाया जाता है कि आपका रीबर्थ और बर्थ जो होगा वो आपके कर्मा के ऊपर होगा, यानी कि अभी आपकी जो लाइफ है, इस लाइफ में आप अपने जैसे कर्म करते हो, इफ़ यू आर डूइंग गुड थिंग्स, देन आपकी अगली लाइफ में व्हेन यू विल बी रीबॉर्न यू विल हैव अ गुड लाइफ। अगर आप अभी एक अभी आप अपने बैड कर्मा कर रहे हो, अभी आप बैड थिंग्स कर रहे हो, तो आप जब रीबॉर्न होंगे तो आपकी नेक्स्ट लाइफ में यू वोंट हैव अ बैड लाइफ, मतलब आपको यू विल फेस ट्रबल्स, यू विल फेस मैनी हार्डशिप्स एट्सेट्रा। तो आपका बर्थ और रीबर्थ जो है, द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू विल गेट इन योर नेक्स्ट birth will depend on how you are collecting your karma in the present life. So this is the cycle as explained by Jainism. Asceticism and penance are required to free oneself from the cycle of karma. This can be achieved only by renouncing the world. Therefore, monastic existence is a necessary condition of salvation. So Jainism में if you want to have salvation, जिसे बोलते हैं मोक्ष, तो for that you have to renounce the world. आपको जो आपका जीवन है, मतलब ये जो वर्ल्डली लाइफ है आपकी, कि हम काम करते हैं, पैसे कमा रहे हैं हम लोग, ये सारी जो हमारा वर्ल्डली लाइफ है, इसे रिनाउंस करके हमें मोनास्टिक एग्जिस्टेंस को अपनाना पड़ेगा। मतलब हमें एक साधु बनना पड़ेगा। वील हैव टू लीव ऑल दिस एंड एस्केटिज्म एंड पेनेंस, मतलब हमें जो ये सारी वर्ल्डली प्लेजर्स हैं इनको छोड़ना पड़ेगा। हमारी लाइफस्टाइल को हैव टू बी टाइम्ड एंड डिसिप्लिन्ड एंड एवरीथिंग, उस तरीके से हमारी लाइफ को करना पड़ेगा, तभी जाकर हमें सैल्वेशन यानी कि मोक्ष मिलेगा। दिस इज़ अ नेसेसरी कंडीशन। Jain monks and nuns took 5 vows: to abstain from killing, stealing and lying, to observe celibacy and to abstain from possessing property. तो जो भी इस वर्ल्डली लाइफ को छोड़ के साधु का लाइफ अपना लेता है, उनको 5 चीज़ों में वो करना, 5 वाउस लेने पड़ते हैं। व्हाट आर द 5 वाउस? फर्स्ट, एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, किसी भी तरीके से। किलिंग मतलब ये नहीं कि बस जाके किसी को किल करना, छोटे से छोटी चीज़, फॉर एग्जाम्पल आप मच्छर मार रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ किलिंग। ओके, सो आप दैट इज़ बाय द जैन्स टू नॉट हैव नॉन वेज। इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ एक्ट्स लाइक मच्छर मारना, कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मारना, एवरीथिंग। इवन जब वो लोग चलते हैं तो ताकि छोटे इंसेक्ट्स के ऊपर पैर रखकर वो ना मरे, तो उसके लिए व्हाट हैपेंस इज वो लोग चप्पल नहीं पहनते हैं। सो द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ किलिंग, स्टीलिंग, कुछ भी चुराना, कुछ भी झूठ बोलना, लाइंग, टू ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड टू एब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी, मतलब ये 5 वाउस उनको लेना पड़ता है। हियर इज़ अ फिगर ऑफ एन इमेज ऑफ तीर्थंकरा फ्रॉम मथुरा, 3rd century CE। तो आप देख सकते हो 3rd century CE में एक तीर्थंकर की स्टैचू है, ये मथुरा से। द वर्ल्ड बियॉन्ड द पैलेस, just as the Buddha's teachings were compiled by his followers, the teachings of Mahavira were also recorded by his disciples. They were often in the form of stories which could appeal to ordinary people. Here is one example from a Prakrit text known as Uttaradhyayan Sutta, describing how a queen named Kamalavati tried to persuade her husband to renounce the world. तो जैसे कि बुद्धा की टीचिंग्स को त्रिपिटका के में के फॉर्म में इन्होंने विनय पिटिका, सुत्त पिटिका, अभिधम्म पिटिका में उन्होंने कंपाइल करा था। इसलिए इसी तरीके से महावीरा की टीचिंग्स को भी उन्होंने कंपाइल करा था। उसमें से ये एक है उत्तराध्यायन सुत्त, एंड इसमें एक कमलावती की एक स्टोरी बता रहे हैं। व्हाट इज़ द स्टोरी? इफ़ द होल वर्ल्ड एंड ऑल इट्स ट्रेजर्स वर योर्स, you would not be satisfied, nor would all this be able to save you. When you die, O king, and leave all things behind, Dhamma alone and nothing else will save you. As a bird dislikes the cage, so do I dislike the world. I shall live as a nun without offspring, without desire, without the love of gain, and without hatred. तो कमलावती जो है वो अपने हस्बैंड किंग को बोल रही है, कमलावती इज अ क्वीन, एंड शी सेज कि ओ किंग, इफ़ ऑल दी वर्ल्ड्स ट्रेजर्स आर योर्स, पूरी दुनिया के जितने भी ट्रेजर, जितनी भी अच्छी सोने वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं सब आपकी हो जाएगी, तब भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा और ना ही वो आपको बचा पाएगा। क्योंकि जब आप
मरोगे, जब आपकी डेथ होगी, तो आप ये सारी चीज़ें, ये वर्ल्डली थिंग्स, ये सोने, पैसे, कपड़े, ये सभी चीज़ों को आप पीछे ही छोड़ के जाओगे। एंड जो आपके नेक्स्ट बर्थ में काम आएगा वो सिर्फ और सिर्फ होगा वो धर्म जो आप करोगे इस लाइफ में, और कुछ नहीं। और कुछ भी आपको अगले जन्म में एक अच्छी लाइफ देने के लिए हेल्प करेगा। तो जैसे एक बर्ड को केज पसंद नहीं आता है, उसको ऐसे केज में रहना पसंद नहीं है, वैसे ही मुझे भी ये वर्ल्ड, ये दुनिया पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं एक नन की तरह रहूँगी, एक साध्वी की तरह रहूँगी। मैं कोई भी ऑफस्प्रिंग नहीं दूँगी, मेरा कोई भी डिज़ायर, ग्रीड, लालच, विश कुछ नहीं होगा, कोई प्यार नहीं, किसी से नफरत नहीं। दैट मीन्स मोह एंड माया, सबसे फ्री होकर रहूँगी। Those who have enjoyed pleasures and renounced them move about like the wind and go wherever they please, unchecked like birds in their flight. तो वो बोलते हैं कि जिनके पास इतना सब कुछ था, ये प्लेजर्स और ट्रेजरी और ये सब चीज़ें थी, जिन लोगों ने उसको छोड़ के रिनाउंस कर दिया है, वो एक फ्री बर्ड की तरह है। उनको जहाँ जाना है वो जहाँ जाते हैं, विदाउट कोई टेंशन नहीं, कोई वरीज नहीं। वो जहाँ जाना चाहे, अपना जैसे लाइफ जीना चाहे वो जीते हैं। Leave your large kingdom, abandon what pleases the senses, be without attachment and property, then practice severe penance, being firm of energy. तो अब वो क्वीन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आपका ये जो बड़ा सा महल है, ये सब छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा है, नथिंग विल हेल्प यू इन योर नेक्स्ट बर्थ। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है, मन को अच्छी लगती है, एवरीथिंग जस्ट लीव इट। कोई अटैचमेंट, किसी तरीके से कोई अटैचमेंट, कोई मोह, कोई नथिंग, सभी से फ्री होकर एंड पेनेंस एंड मतलब प्रैक्टिस योर लाइफ एंड बी लाइक अ फ्री बर्ड. Which of the arguments advised by the queen do you find most convincing? This is upon you, but yeah, I think I find all of them pretty convincing. Ki, Dhamma will help you, and this attachment, these treasures, you will leave all of this behind. Nothing, you will not take any of this, and also that I don't think that really any of this will help you in the next birth. So, and apart from that, all of it is quite convincing, I think. The spread of Jainism. Gradually, Jainism spread to many parts of India. Like the Buddhists, Jain scholars produced a wealth of literature in a variety of languages, Prakrit, Sanskrit and Tamil. For centuries, manuscripts of these texts were carefully preserved in libraries attached to temples. Some of the earliest stone sculptures associated with religious traditions were produced by devotees of the Jaina Tirthankars, who have been recovered from several sites throughout the continent. तो जैनिज़्म के जितने भी वो रहते थे स्क्रिप्चर्स एंड टेक्स्ट एंड बुक्स एंड ये सब चीज़ें जो थी वो हमें ऑफन टेम्पल्स वगैरह में देखने को मिल जाती है. तो टेम्पल्स में के पास या उसमें एक लाइब्रेरी फॉर्म कर लेते हैं, वहाँ पर ये सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स टेक्स्ट वगैरह हमें दिखती है. और बहुत सारी टेक्स्ट हैं, प्राकृत, संस्कृत, तमिल वगैरह बहुत लैंग्वेजेस में ये टेक्स्ट हमें देखने को मिलती है. दिस इज़ अ फिगर, दिस इज़ अ पेज फ्रॉम अ 14th century Jain manuscript. Okay, you can see this. Now, can you identify the script? Yes, quite seems like Devanagari only. Don't you think? Like this is the R, K, P, this is Nat, P, D, Ru, P, Shri. Okay. The Buddha and the quest for enlightenment. One of the most influential teachers of the time was the Buddha. बुद्धा जो थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, उनका बहुत इन्फ्लुएंस आ सकते हैं. एंड बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म बोथ. एंड इसका एक रीज़न था जो मैं आपको बता रही हूँ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. ये मतलब बहुत रिलेटेड है. तो ये उस टाइम पर जो था, वैदिक टाइम्स फॉलो हो रहे थे, वैदिक रिचुअल्स फॉलो हो रहे थे, वैदिक रूल्स फॉलो हो रहे थे. एंड उस टाइम पर कास्ट जो था वो बहुत इम्पोर्टेंस का था. तो उसमें आपको बोला जाता था बड़ी बड़ी सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करो, यज्ञ करो, एंड कास्ट है, आप शूद्र हो, आप क्षत्रिय हो, आपको ये ड्यूटी करना है, वो करना है. तो एवरीथिंग वाज वेरी स्ट्रिक्ट, वाज वेरी बाउंड. तो आपको मतलब इतनी सारी चीज़ें की, जैसे आज भी होता है कि आप आज भी होता है जैसे 21 ब्राह्मणों को ये करो, इस तरीके से सैक्रिफाइस करो, दान करो, पुण्य करो, एवरीथिंग. तो दिस वाज ओके, नॉट ओके ये बात नहीं है. बट द पॉइंट इज कि इन सब चीज़ों से द पीपल were not really able to do these things.
एवरीबडी वॉज नॉट एबल। देखिए जो रिच होता है, जो वेल्दी होता है, उसके लिए ये सब ईजी है कि ठीक है इतनी ज़मीन दान कर दी, इतने पैसे दान कर दिए। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समबडी हु इज़ पुअर, देखिए ज़रूरी नहीं, हमने देखा है पहले भी कि पुअर ब्राह्मण्स भी होते थे, पुअर क्षत्रियाज भी होते थे, सोल्जर्स वगैरह ये सभी होते थे। सो फॉर देम एवरीथिंग वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, कि मतलब जो वेदास में बताया गया है कि आपको अगर अच्छी लाइफ चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा। सो दे वर नॉट रियली एबल टू फॉलो इट प्रॉपरली। उनके लिए वो एक बर्डन जैसा होते जा रहा था। ऐसे टाइम पर व्हेन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जैसे दो रिलीजन, दो स्कूल्स ऑफ थॉट पॉपुलर होते हैं, और वो आपको कहते हैं कि देखिए ये कास्ट कुछ नहीं होता है, ये सैक्रिफाइसेस से कुछ नहीं होता है, आपको अपनी लाइफ को ऐसे जीना है, जस्ट गिव अप एवरीथिंग, लिव अ लाइफ कि आप इस तरीके से लाइफ जियो, गिव अप ऑन एवरीथिंग, नो मनी, नथिंग विल हेल्प यू। तो ये जो सेंस जिन्होंने बनाया है दोनों बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ने, दिस रियली अपील टू पीपल बिकॉज दे वर रियली स्टिफनिंग विद द बर्डन ऑफ दी सैक्रिफाइसेस, बड़े बड़े यज्ञ वगैरह। तो व्हेन दीज टू सेक्ट्स से कि यार ये वर्ल्डली प्लेजर से छोड़ के आप ऐसी लाइफ जियो विथ लाइक no clothes, no money, nothing, no property, no attachment, only then will you attain salvation. So this was something that attained, that really appealed to people. Over the centuries, the message was spread across the subcontinent and beyond. Japan, Central Asia, China, Korea, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Indonesia, everywhere Buddhism is a well spread religion. तो हमें बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में कैसे पढ़ा है? देखिए ये जो है वो बहुत केयरफुली रिकन्स्ट्रक्ट करे गए हैं। बुद्धा के जो डिसाइपल्स हैं, बुद्धा ने पहले जो बोला था उनको ओरली ट्रांसमिट करा गया, उसको केयरफुली राइट डाउन करा गया। तो हिस्टोरियंस ने बहुत केयरफुली ये डिटेल्स रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करी है लाइफ की हैजियोग्राफी से। हैजियोग्राफी क्या होता है? हैजियोग्राफी इज अ बायोग्राफी ऑफ अ सेंट और रिलीजियस टीचर। हैजियोग्राफीज ऑफन प्रेज द सेंट्स अचीवमेंट्स एंड मे नॉट ऑलवेज बी लिटरली एक्यूरेट। दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे टेल अस अबाउट द बिलीव्स ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेडिशन। तो किसी भी सेंट या किसी भी रिलीजियस टीचर, गुरु वगैरह की जब ऐसे रिलीजियस पर्सनल की जब बायोग्राफी होती है उसको हैजियोग्राफी बोलते हैं। तो ऐसे बुद्धा की बहुत हैजियोग्राफीज हमारे लिए अवेलेबल है जो उनकी डिसाइपल्स ने कंपाइल करी थी। और ये बहुत सारी हैजियोग्राफीज जो है ये कब लिखी गई? अ सेंचुरी आफ्टर द टाइम ऑफ बुद्धा, मतलब जब बुद्धा की डेथ हो गई उसके बाद, उसके 100 साल बाद ही राइट डाउन होना शुरू हुई है, ताकि वो अपने टीचर की मेमोरी को प्रिजर्व कर सके। तो बहुत देखिए हैजियोग्राफीज ये जो है ये बहुत एक्यूरेट तो नहीं हो सकती ऑफ कोर्स, बिकॉज आफ्टर अ सेंचुरी आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो कितनी एक्यूरेसी उसमें मिलेगी। बट फिर भी वी हैव ट्राइड एंड ये एक अच्छा सोर्स है एटलीस्ट ये बताने के लिए कि व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द पीपल टुवर्ड्स दैट पर्सन। तो इन ट्रेडिशंस के हिसाब से बुद्धा जो थे उनका नाम सिद्धार्थ था, जैसे महावीर का वर्धमान था। एट बर्थ उनका नाम सिद्धार्थ था। वो साक्या क्लैन के एक चीफ के बेटे थे और उनको मतलब पूरी लाइफ उनकी जो थी वो पैलेस में थी। उन्होंने कभी भी ऐसे सौरो नहीं देखा था, हार्श रियलिटीज़ नहीं देखी थी, तो उनकी लाइफ काफ़ी प्रोटेक्टेड थी और बिल्कुल हैप्पी चल रही थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने चैरिटियर को बोला और उनको परसुएट करा कि तुम जाओ मुझे इस पैलेस के बाहर इस सिटी में लेके जाओ, मुझे देखना है। तो जब उन्होंने अपनी फ़र्स्ट जर्नी इनटू द रियल वर्ल्ड करी तो वो बहुत ट्रामेटाइजिंग था, बहुत ही मतलब हार्श था उनके लिए। वो बहुत ज़्यादा एंग्विश्ड हो गए थे, दुखी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा कि कैसे उसको डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, कैसे उसके पार्ट्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। एक बीमार आदमी को देखा, फिर एक लाश को देखा। तो उस मोमेंट पे उन्होंने रियलाइज़ करा कि यार वट एवर यू डू, आपका डीके और डिस्ट्रक्शन जो है वो इनएविटेबल है। आप कुछ भी करो, आपको बूढ़ा होना ही है, आपको मरना है ही सही। इट इज़ इनएविटेबल। आप इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, इससे पीछे आप कुछ भी कर लो। तो उसने फिर एक होमलेस मेंडिकेंट को भी देखा। मेंडिकेंट मतलब एक साधु टाइप होमलेस सा था, घर में नहीं था, जो कि भिक्षा वगैरह ले रहा था। तो उनको जब देखा तो जब उसको रियलाइज़ हुआ कि यार वो होमलेस जो था वो लग रहा था कि उसने ओल्ड एज के साथ वो अपने टर्म्स पे आ गया था, मतलब उसको रियलाइज़ हो गया था, वो ये बात समझ चुका था कि अब वो कैसे बूढ़ा है या फिर मतलब ये बूढ़ा होगा या बीमार होगा या उसकी डेथ होगी और उसको फिर फाइनली उसके बाद पीस मिलेगी। तो सिद्धार्थ ने इसको देखा, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो यही सेम पाथ अडॉप्ट करेंगे और उसके बाद उन्होंने पैलेस को छोड़ के और अपने खुद के ट्रूथ के सर्च में वो बाहर
निकल गए। तो सिद्धार्थ ने बहुत सारे पाथ्स वो करे, मतलब बॉडीली मॉडिफिकेशन को भी बहुत टाइम तक उन्होंने खाना ही नहीं खाया, बहुत टाइम तक कुछ ऐसे इस तरीके से बहुत एक्सट्रीम पाथ्स को भी उन्होंने इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो करा। एंड एक्सट्रीम मेथड्स को छोड़ के फाइनली उन्होंने बहुत दिनों तक मेडिटेशन किया और उसके बाद उन्हें एनलाइटमेंट मिला। इसके बाद वो कहे जाने लगे बुद्धा और द एनलाइटेंड वन। तो उनकी पूरी फिर बची हुई लाइफ के लिए उन्होंने धम्मा एंड राइटियस लिविंग का पाथ जो है वो सिखाया कि आपको ये धर्म है, ऐसे करना चाहिए, दिस इज़ द राइट पाथ। दिस इज़ अ स्कल्पचर 200 CE फ्रॉम अमरावती आंध्र प्रदेश डिपिक्टिंग द डिपार्चर ऑफ बुद्धा फ्रॉम हिज पैलेस। इसमें दिखा रहा है कि कैसे बुद्धा जब पैलेस छोड़ के जा रहे थे, सो एवरीबडी वाज बिहाइंड देम गोइंग, वे वर वेरी सैड, एंड देखिए कैसे हाथ जोड़ रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स। सबसे बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं वो सुत्त पिटका में रिकन्स्ट्रक्ट करी हुई है। हमने पहले भी पढ़ाई की थी पिटका में, ये 3 है जिसमें से सुत्त पिटका में बुद्धा की सारी टीचिंग्स हैं। तो इसमें जो स्टोरीज़ है मतलब डिस्क्राइब करी गई है वो उनमें कुछ ऐसे मिराकुलस पावर्स की बातें कर रहे हैं, जादुई चीज़ों की बातें कर रहे हैं, और कुछ में ऐसा सजेस्ट किया जा रहा है कि बुद्धा ने रीज़न और परसुएशन लॉजिक के थ्रू लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करी, और ना ही ऐसे सुपर नेचुरल और जादुई पावर ऐसी कुछ नहीं दिखाई। फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी बताती है कि एक वुमेन, एक औरत थी जो कि बहुत दुखी थी क्योंकि उसके बेटे की, उसके मतलब बच्चे की डेथ हो गई थी। तो वो बहुत दुखी थी, मतलब बहुत टाइम से वो इस बात से, इस ट्रूथ से वो रियलाइज़ नहीं कर पा रही थी, इस ट्रूथ को फेस ही नहीं कर पा रही थी कि उसका चाइल्ड जो है वो मर गया। तो वो डोर टू डोर जा रही थी कि कोई तरीका, कोई रास्ता हो जिससे उसका चाइल्ड जो है वो वापस ज़िंदा हो जाए। तो एक दिन वो बुद्धा के पास आई। बुद्धा ने उसको बहुत जेंटली कन्विंस करा उसको रीज़न से कि देखो डेथ जो है वो इनएविटेबल है, आप कुछ भी करो डेथ को आप नहीं वो कर सकते, डेथ सबको आनी ही है। तो आप अपने सन को वापस बैक टू लाइफ नहीं ला सकते। तो इस तरीके से बाय रीज़न उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश करी कि ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है स्टोरीज़ ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज में लिखी जाती थी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाती थी और ऑर्डिनरी लोगों को अपील करती थी। तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, जैसे हमने जैना फिलॉसफी में क्या क्या पढ़ा कि नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, अहिंसा, द होल वर्ल्ड इज एनिमेटेड, एंड 5 वाउज लेने पड़ते थे फ्रॉम लाइक सेलिबसी, एब्सटेनिंग फ्रॉम having property, stealing, lying, and abstaining from killing, etc. इसमें ये जो फिलॉसफी है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, ये कहती है कि द होल वर्ल्ड इज ट्रांसिएंट, दैट इज अनेका एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ठीक है, पूरा वर्ल्ड जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो पूरा वर्ल्ड जो है वो चेंज होता रहेगा, अनेका, ट्रांसिएंट। इट इज़ ऑल्सो सोललेस, अनंत, एंड देयर इज़ नथिंग परमानेंट और एटर्नल इन इट। सोललेस मतलब कि इसमें कोई भी चीज़ परमानेंटली नहीं है, हर चीज़ जो आई है उसको एक ना एक दिन जाना है, नथिंग कैन स्टे फॉर एवर। तो इस ट्रांसिएंट वर्ल्ड के अंदर सॉरो यानी दुख जो है वो इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, मतलब आप कितना भी करो, दिस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। दुख सबको आना ही है। तो सिर्फ एक पाथ ऑफ मॉडरेशन बिटवीन सीवियर पेनेंस एंड सेल्फ इंटेलिजेंस, मतलब आप खुद मेडिटेशन करो, बहुत पेनेंस को फॉलो करो, अपनी लाइफ को इस तरीके से बनाकर ही आप इन वर्ल्डली ट्रबल से ऊपर हटके अपनी एक नई एग्जिस्टेंस में आप हो पाओगे। तो अपनी अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज़्म में गॉड थे या नहीं थे ये इररिलेवेंट था, उसके बारे में कोई इतनी बात नहीं कि भगवान है कि नहीं है, बट इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता था कि आप पूरी दुख होना ही है, सबको आना ही है, तो आप अपनी लाइफ को ऐसे जियो, ऐसे करो, एंड ऑल ऑफ दिस। बुद्धिज़्म इन प्रैक्टिस, ये सुत्त पिटका का एक एक्सर्प्ट है, ओके, वहाँ से एक्सर्प्ट है जो कि बुद्धा ने दिया था, एक वेल्दी हाउस होल्डर था जिसका नाम था सिगाला, उसको दिया था। तो वो बुद्धा सिगाला को बोलते हैं। 5 तरीके हैं जिससे 5 तरीक़ों से एक मास्टर को अपने नौकरों, अपनी एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना चाहिए। कैसे? फर्स्ट, उनको उतना ही वर्क असाइन करो जितनी उनकी स्ट्रेंथ हो, जितना वो कर सके। सेकेंड, उनको डेलिकेसीज उनके साथ शेयर करो, उनको फूड दो, खाना दो, प्रॉपर वेजेस दो, टाइम पे दो। थर्ड, उनको सिकनेस में टेंड करो, हेल्प करो, अगर वो बीमार है तो उनके साथ ऐसे नहीं छोड़ दिया है, उनके साथ हार्श बिहेवियर कर रहे हैं, उनके साथ डेलिकेसीज शेयर करो और टाइम टू टाइम उनको लीव भी ग्रांट करो। फिर नेक्स्ट वो बोलते हैं 5 तरीके हैं जिसमें क्लैंसमैन को अपने समनांस की पीछे लिखना चाहिए। समनांस मतलब क्लैंसमैन, मतलब जो कि अपनी बोलते हैं ना कि जो आपकी रिलीजन, जाति वगैरह जो है
एंड समनाज मतलब वो लोग जिन्होंने वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया है। तो ब्राह्मण और समनाज इनकी टेक केयर कैसे, मतलब इनके लिए कैसे लुक आफ्टर करना चाहिए नीट के, उनके मतलब उनके तरफ अफेक्शनेटली बात करो, ऐसा नहीं उनके साथ रूड है, एक्ट और स्पीच में अफेक्शनेट रहो, माइंड में उनके बारे में अच्छा सोचो, उनको रिस्पेक्ट करो, एक ओपन हाउस रखो कि अगर कोई भी आता है तो आप उनको ओपन हाउस रखिए, आप उनको उनकी वर्ल्डली नीड के मतलब आपके पास जो चीज़ है उसके आप उनको शेयर करो। तो सिकाला ऐसी सिमिलर इंस्ट्रक्शंस है कि सिकाला को मतलब कैसे अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव करना चाहिए, टीचर के साथ बिहेव करना चाहिए, वाइफ के साथ बिहेव करना चाहिए। तो ये एक स्टोरी है सुत्ता पितिका की कि बुद्धा का मैसेज कैसे बाकी सब लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए। सजेस्ट व्हाट द इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग पेरेंट्स टीचर्स एंड वाइफ में हैव बीन। सो ये ठीक है। बुद्धा ने सोशल वर्ल्ड को रिगार्ड किया था कि क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस जो है वो डिवाइन ओरिजिन का नहीं था। उन्होंने बोला था कि ये जो मतलब कहने का मतलब ये जो पूरी सोशल वर्ल्ड हमने बनाई है, ये किंग, टैक्सेस, ये पैसे, कपड़े, ये सब चीज़ें, ये रिचुअल्स, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये डिवाइन ओरिजिन की नहीं थी, ये ह्यूमंस ने खुद ने बनाई हैं। तो उन्होंने हमेशा से किंग्स को, गृहपतिस को ये एडवाइस किया था कि हमेशा ह्यूमन रहो, एथिकल रहो, हम्बल रहो, गलत काम मत करो। और इंडिविजुअल एफर्ट जो है, अगर आप हर एक इंडिविजुअल एफर्ट करेगा तभी जाके हम सोशल रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। बुद्धा ने हमेशा एम्फेसाइज करा इंडिविजुअल एजेंसी को, राइटियस एक्शन को, कि आप खुद जो है आप ये मत करो कि आप खुद जो करते हो तभी जाकर एक चेंज ला पाओगे, ये मत आप वो करो कि यार कोई दूसरा करेगा तो हो पाएगा। नो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इंडिविजुअल एजेंसी और राइटियस एक्शन को फॉलो करना है कि आपको इस अगर साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ से फ्री होकर आपको अल्टीमेट सैल्वेशन वगैरह चाहिए और इससे सेल्फ रियलाइजेशन अटेन करना है, निब्बाना जिसे बोलते हैं अटेन करना है, विच इज़ द एक्सटिंग्विशिंग ऑफ द ईगो। लिटरली मतलब निब्बाना मतलब हमारे अंदर जो ईगो है, डिज़ायर, उसको ख़त्म कर देना। और दस ये जो हमारी सफरिंग की, बर्थ की, रिबर्थ की साइकिल है जो कि वर्ल्ड रिनाउंस कर देते हैं, उसको ख़त्म करना है तो वो आप इंडिविजुअल एजेंसी के थ्रू ही कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग, जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, बुद्धा के लास्ट वर्ड्स उनके फॉलोअर्स के क्या थे? बी लैम्प्स अनटू योर सेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। तो वो बोलते कि प्लीज़ आप किसी और में अपनी रोशनी, अपनी लाइट मत देखो, आप खुद अपने लिए अपनी इंस्पिरेशन बनो, अपनी लाइट बनो, आप खुद काम करो और अपने खुद के लिबरेशन के लिए, सैल्वेशन के लिए वर्क करो। फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा, तो देखिए बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे वो बहुत बड़ी डिसाइपल, बहुत ज़्यादा बढ़ते गए धीरे धीरे करके, और उन्होंने एक संघ फाउंड किया, एक ऑर्गेनाइजेशन, संघ मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स, जो कि फिर लेटर धम्मा के टीचर्स बन गए कि जो उन्हीं की तरह धम्मा को प्रोपोगेट करते थे। तो ये मॉन्क्स जो थे वो बहुत सिंपल लाइफ लिखते थे, सिर्फ उतनी चीज़ों को पोजेस करते थे जितनी की उनको नेसेसिटी होती थी, जितनी सर्वाइवल के लिए नेसेसिटी होती थी। जैसे कि बस एक बाउल होता था जिसमें वो खाना ले सके, ठीक है, और वो ऐसे भिक्षा लेते थे, मतलब लोगों के घर घर जाके खाना मांगते थे और इनको बोलते थे भिक्खूस। तो इनिशियली सिर्फ मेन अलाउड थे संघा में, लेकिन धीरे लेटर क्या हुआ कि औरतों को भी अलाउ कर दिया। औरतों को कैसे अलाउ करा? विमेन को, फीमेल्स को। बुद्धा के एक वो थे डिसाइपल थे, डियरेस्ट डिसाइपल थे आनंद, तो उन्होंने बुद्धा को परसुएट करा था कि आप प्लीज़ फीमेल्स को भी संघ में अलाउ करो। तो बुद्धा की जो फॉस्टर मदर थी, मतलब जिन्होंने उनका महा प्रजापति गौतमी, वो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने संघा में एंट्री ली थी और जो सबसे फर्स्ट भिक्खुनी वही थी। उसके बाद बहुत सारी और फीमेल्स संघा में एंटर हुई और टीचर्स ऑफ धम्मा बनी और फिर थेरी बनी। थेरी मतलब रिस्पेक्टेड वुमेन जिन्होंने लिबरेशन को अटेन कर लिया है। तो बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे वो बहुत सोशल ग्रुप से आए थे, मतलब वो ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण्स थे या वो थे बुद्धिस्ट थे, वो नहीं, वो उसमें किंग्स भी थे, वेल्दी मैन भी थे, गृहपतिस भी थे, वर्कर्स भी थे, स्लेव्स भी थे, क्लास, मतलब हर सोशल लाइफ, हर वॉक ऑफ लाइफ से लोग जो थे वो बुद्धा के संघ में, उनके अंडर उनके डिसाइपल बने थे। तो एक बार अगर वो संघ में आ गए तो सभी जो थे वो इक्वल थे, सभी वो शेयर करते थे अपनी आइडेंटिटीज़ को, मतलब उनकी कोई वो नहीं थी कि ये बड़ा है ये छोटा है, नथिंग लाइक दैट। सब भिक्खूज और भिक्खुनीज बने थे, सबकी इक्वल थे, पोजीशन सेम थी। तो उनकी जो इंटरनल फंक्शन थी संघा की वो कैसी थी? वो बेस्ड ऑन ऑफ गणाज एंड संघास के ऊपर ही वो बेस करी जाती थी कि आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो कंसेंसस से होगा, डिस्कशन के थ्रू होगा,
अगर वो फेल हो जाए तो फिर वोट होगा उस सब्जेक्ट के ऊपर। द थेरीगत्ता, थेरीगत्ता क्या, ये पहले फिगर देख लीजिए। दिस इज़ अ वुमेन वाटर कैरियर मथुरा 3rd century BC। एंड ये क्यों फिगर इंपॉर्टेंट है, ये सोर्स से पता चलेगा। ये एक यूनिक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि सुत्ता पिटिका का पार्ट है, और इसमें बहुत सारे कलेक्शन ऑफ वर्सेस हैं जो कि भिक्कुनीज ने बनाई हैं। भिक्कुनीज मतलब विमेन, फीमेल्स के द्वारा। ये एक विमेन की सोशल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के अंदर हमें बताती है। ये जो स्टोरी है ये एक पन्ना के बारे में है, जो कि पन्ना एक दासी है, एक स्लेव है, किसी के घर में एक स्लेव थी जो हर रोज़ नदी तक जाती थी ताकि वो वहाँ से पानी ला सके अपने मास्टर के घर के लिए, अपने मास्टर के लिए। तो वो नदी तक जाती थी, वहाँ से पानी भरती थी। वहाँ पर वो हर रोज़ एक ब्राह्मण को देखता था जो कि नदी में डुबकी लगा के अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करता था। तो एक दिन वो उस ब्राह्मण से बात करती है, और वो क्या बात करती है, यहाँ पर ये कॉन्वर्जेसन दी हुई है। पन्ना बोलती है कि मैं एक वाटर कैरियर हूँ, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, मुझे हमेशा आना पड़ता है, और मुझे यहाँ से पानी ले जाना पड़ता है। भले ही मतलब क्योंकि मुझे हमेशा से डर रहता है कि अगर मैं पानी नहीं लाऊंगी तो ऑफकोर्स पनिशमेंट मिलेगी, उसका काम है ये, उसको पानी लाना ही पड़ेगा। या फिर मतलब अगर मैं पानी नहीं लाऊंगी तो या तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, या मेरी जो मालकिन है वो मुझे गुस्सा करेगी, डांटेगी कि तुम्हारा ये काम है, तुमने क्यों नहीं करा। तो तुम किस चीज़ से डरे हुए ब्राह्मणा, मुझे तो ये डर है, मुझे उसका बात माननी पड़ती है, इसलिए मुझे रोज़ आना पड़ता है। तुम किस चीज़ से डरे हुए कि तुम रोज़ आते हो, और इस ठंडी, भले ही कितनी भी ठंडी हो, तुम कब कर रहे हो, शिवर कर रहे हो, पर तुम इस नदी में डुबकी लगाते हो। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि मैं सिर्फ अच्छा इसलिए कर रहा हूँ ताकि बुरे को रोक सकूँ। चाहे कोई जवान हो, बूढ़ा हो, किसी ने भी अगर कुछ बुरा काम किया हो, तो अगर वो इस नदी में आके डुबकी लगाएगा तो उसके पाप धुल जाएंगे। तो मैं इसी के लिए आके डुबकी लगाता हूँ ताकि मेरे पाप धुल जाए। तो पन्ना बोलती है कि जिसने भी तुम्हें ये बोला है कि अगर पानी में डुबकी लगाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, तो इस केस में तो जितने भी फ्रॉग्स मतलब मेंढक, कछुए वगैरह जो पानी में रह रहे हैं वो तो फिर हेवन ही जाएंगे ना, क्योंकि वाटर स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स वगैरह वो तो रोज़ ही इस पानी में, वो तो पानी में ही रहते हैं, डुबकी लगाते हैं। देखो, इसके अलावा ऐसा कुछ मत करो जो तुम डर से, ऐसा कुछ मत करो जो तुम्हें इस पानी तक लाए, मतलब तुम ऐसे डर के कोई भी काम मत करो। तुम ब्राह्मण रुक जाओ, तुम अपने आप को सिर्फ मतलब ट्रबल्स दे रहे हो, अपनी स्किन मतलब इतनी ठंडी में, इतनी ठंड में, इतनी ठंडे पानी में डुबकी लगा के सिर्फ अपने आप को ट्रबल दे रहे हो। तो ऐसा कुछ मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे पानी में डुबकी लगाने से पाप धुल जाएंगे, तो फिर हर मेंढक, हर कछुआ तो सीधे फिर हेवन ही जाएगा, उसके तो सभी पाप धुल जाएंगे। तो विच ऑफ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर एविडेंट, ये लग रहा है कि हर फ्रॉग, टर्टल, स्नेक, ऐसा मत करो। स्टॉप कमिंग डाउन द वाटर, दिस इज रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स। ये जो है वो विनय पिटिका के में है। देखिए, हम ऑलरेडी पढ़ चुके कि सुत्ता पिटिका में क्या है, अभिधम्म पिटिका में क्या है, एंड सुत्ता पिटिका में क्या है। तो विनय पिटिका में जो लोग वर्ल्ड को रिनाउंस कर लेते हैं, मॉन्क्स रहते हैं, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन लेड डाउन है। जब एक नया ब्लैंकेट या रंग बनता है, एक भिक्खू बनाता है, खुद बनाता है, तो उसको कम से कम उसे 6 साल तक रखना होता है। अगर 6 साल के पहले ही वो एक नया ब्लैंकेट या रंग बनवा ले, कर ले, और पहले वाले को वो ख़राब हुआ हो, ना हुआ हो, जो भी हो, तो जब तक वो भिक्खूज ने ऑथराइज़ नहीं किया हो, उस नए रग को फॉरफिट कर लिया जाएगा, कन्फेस कर लिया जाएगा। वो उसके पास परमिशन नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये कि आपको जितना चाहिए उतना ही रखो। ऐसा नहीं कि आप हर थोड़े थोड़े टाइम में एक नया ब्लैंकेट बना रहे हो। नो, आपकी जब तक वो पुराना ब्लैंकेट चल रहा है, और मिनिमम 6 सालों तक आपको उसको चलाना है। या फिर कोई अगर ऐसा कुछ हो गया, कोई वो नेसेसिटी हो, तब जाकर, नहीं तो आप नया रग आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर एक भिक्खू एक फैमिली रेसिडेंस पे आए जो उसके परिवार वालों का है, उसके जान पहचान वालों का है, और उस फैमिली वाले ने उसके साथ केक या बहुत अच्छी चीज़ें, मतलब बहुत अच्छी डिलीशियस मील्स शेयर करी है, तो वो 2 या 3 बाउल ले सकता है। ऐसा नहीं कि जितने चाहे वो ले भर के अपने पास रख ले। वो 2-3 बाउल तक अपने साथ वो उनसे ले सकता है, और अगर उससे ज़्यादा वो लेगा तो उसको कन्फेस कर लिया जाएगा, उससे ज़्यादा वो नहीं लेगा। एंड 1 और 2-3 बाउल लेने के बाद भी उसे बाकी भिक्खूस के साथ उसे शेयर करना है। यही प्रॉपर कोर्स है, ठीक है। फिर 3rd रूल है कि अगर कोई भिक्खू बेडिंग वगैरह, लॉजिंग वगैरह जो कि वहाँ सेट कर रहा है, या फिर हैविंग हैड इट सेट आउट एंड देन ऑन डिपार्टिंग, मतलब उसने वो बेड वगैरह ठीक है बिछाया करा,
लेकिन बाहर निकलते वक्त उस बेड को जमा के घड़ी करके अच्छे से साइड में नहीं रखा, अपनी प्रॉपर प्लेस पे नहीं रखा, या फिर बिना बोले करे कहीं भी चला गया, तो वो बेड जो है वो कन्फेस कर लिया जाएगा, बेडिंग जो है। तो ये रूल्स क्यों फ्रेम करे गए थे? ये रूल्स इसलिए फ्रेम करे गए थे ताकि सभी लोग जो है वो एक साथ मिल के रहे, प्रॉपरली रहे, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करे, एंड उनको एक आदत पड़ेगी, एक सैक्रिफाइस की आदत। या आप अपना ही अपना नहीं देख रहे हो, आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो वर्ल्डली प्लेजर से फ्री होने के लिए। बुद्धिज़्म जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा लेवल पर फैला, दोनों बुद्धा की लाइफ टाइम में भी और बुद्धा की डेथ के बाद भी, और बहुत लोगों को अपील करा जो कि एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस से, मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, बहुत डिससेटिस्फाइड थे, जो सोशल चेंजेस हो रहे थे उससे सेटिस्फाइड थे, जो इम्पोर्टेंस उन्होंने वैल्यूज़, मतलब ये सुपीरियोरिटी और ये कि अच्छा ये तो ब्राह्मण जी प्योर है, शूद्रा तो अनप्योर है, अनटचेबल है, उस पर जो उन्होंने एम्फेसिस किया था कि जन्म के थ्रू ही आप ऐसे बन सकते हो, मतलब आप अगर एक शूद्रा बॉर्न हुए तो आप कितने भी स्किलफुल हो, कितने भी अच्छे हो, आपको बाकी 3 वर्णास को सर्व ही करना है। ये सब चीज़ें, ये जो एम्फेसिस प्लेस ऑन मेता, मतलब फेलो फीलिंग और करुणा और कंपैशन, इस पे उन्होंने एम्फेसाइज करा था कि यार आप एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के लिए कंपैशनेट रहो, जो कि यंगर थे, जो वीकर थे, स्पेशली उनकी मदद करो। तो इन सब चीज़ों ने जो है वो बुद्धिज़्म की तरफ लोगों को अपील करा। We have seen that Buddhist ideas and practices emerged out of a process of dialogue with other traditions, including those of Brahmins, Jains, and several others, not all of whose ideas and practices were preserved in texts. Some of these interactions can be seen in the ways in which sacred places came to be identified. From earliest times, people tended to regard certain places as sacred. These included sites with special trees or unique rocks, or sites of awe-inspiring natural beauty. These sites with small shrines attached to them were sometimes described as चैत्यास। So चैत्यास क्या होते थे? कुछ जगहों को एक सेक्रेट साइट की तरह उसको ट्रीट किया जाता था, या तो वो कोई स्पेशल ट्री है, कोई यूनिक रॉक है, कुछ इस तरीके से होता ही है। तो दीज प्लेसेस आर नोन एज चैत्यास। चैत्यास क्या होता है? चैत्यास may have been derived from the word chitta, meaning a funeral pyre and by extension a funerary mound. ओके मतलब जो चिता जलती ना, चिता, तो उससे हमें चैत्य वर्ड लगता है कि मिला है। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसमें बहुत सारे चैत्यास का मेंशन हमें ऑलरेडी देखने को मिल जाता है। ये वो प्लेसेस डिस्क्राइब करता है जो कि बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड होते हैं। कैसे? जैसे वो लुम्बिनी में बॉर्न हुए थे, उनको एनलाइटमेंट बोध गया में मिली थी, ट्री के अंडर बैठे बोध गया में, और उन्होंने अपनी सबसे पहला सरमन सारनाथ में दिया था, उनको निब्बाना मिली थी कुशीनगरा में। सो दीज आर द प्लेसेस जो बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनकी बर्थ हुई, उन्होंने कहा फर्स्ट सरमन दिया, ऑल दीज प्लेसेस। तो ये प्लेसेस आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोध गया, सारनाथ, दीज आर ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस इवन टुडे। ग्रेजुअली ये सारे प्लेसेस को सेक्रेड मानने लगे। तो हमें पता है कि मतलब बुद्धा के बुद्धा के एटलीस्ट 200 ईयर्स बाद अशोका ने क्या करा? लुम्बिनी पर एक पिलर इरेक्ट करवाया, ये दिखाने के लिए कि येस अशोका हैज़ विजिटेड दैट प्लेस। तो ये जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस की प्लेस थी, यहाँ पर अशोका ने एक पिलर बिल्ड कराया जिससे उसका एक मार्क हो जाए कि येस अशोका हैज़ ऑल्सो विजिटेड दैट प्लेस। ये मैप देखिए, दीज आर द मेजर बुद्धिस्ट साइट्स। वाई देखिए, सांची में स्तूपा है, अजंता में बहुत सारी पेंटिंग्स है बुद्धा की लाइफ से, यानी जताकास, जो कि जताकास में बुद्धा की लाइफ के ऊपर स्टोरीज है, बुद्धा के प्रीवियस लाइफ के ऊपर है, तो इससे बहुत रिलेटेड बहुत सारी पेंटिंग्स हैं यहाँ पर। और भी बहुत सारी, जैसे अमरावती में सांची स्तूपा है, जैसे सांची में है। उसी तरीके से ये नागार्जुन नकोंडा में भी अच्छे स्तूपास हमें मिले हैं। श्रवस्ती, लुम्बिनी, कुशीनगर, बोध गया, Bhairut, all of Sarnath, all of these places have some significance to the religion Buddhism or Buddha. Why were stupas built? Stupas क्यों बनाए जाते थे? देखिए, ऐसी कुछ प्लेसेस और भी थी जिनको सेक्रेट माना जाता था। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बुद्धा के रिलिक्स मिले थे। रिलिक्स मतलब उनकी बॉडीली रिमेन्स, उनके जैसे नाखून हो गए, बाल हो गए, या फिर बुद्धा ने जो यूज़ करा है उनको वहाँ पर बरी करा गया बुद्धा के टाइम से। तो इन चीज़ों को, ये जो चीज़ें थी ना जो बुद्धा की, या तो चीज़ें थी, या तो उनकी बॉडीली रिमेन्स, उनकी कुछ हड्डी हो गई, उनकी अस्थि हो गई, वट एवर द थिंग्स आर, उन चीज़ों को या उनके द्वारा यूज़ की गई चीज़ों को
इन जगहों पर एक बॉक्स में रखा जाता था, इनके ऊपर माउंड्स बना दिए जाते थे। माउंड्स मतलब ऐसे सेमी सर्कुलर पोर्शन था, एक कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता था, एंड दीज वर नोन एज स्तूपास। सो ये जो ट्रेडिशन है, स्तूपास बनाने का जो ट्रेडिशन है, ये बुद्धिज़्म के पहले भी प्रेवलेंट हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि बुद्धिज़्म के बाद ही शुरू हुआ या बुद्धिज़्म से शुरू हुआ है, लेकिन वो बुद्धिज़्म के साथ एसोसिएट होने लगे क्योंकि बुद्धिज़्म के बाद से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। एंड क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें थी जिनको बहुत ही सीक्रेट माना जाता था, तो पूरा के पूरा स्तूपा जो है वो दोनों बुद्धा और बुद्धिज़्म का एक सिंबल माना जाने लगा, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव माने जाने लगा। तो जैसे एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है अशोक वदना, उसके अकॉर्डिंग अशोका ने बुद्धा के रिलिक्स के जो पोर्शंस हैं, मतलब बुद्धा के जो ये पोर्शंस हैं उनकी चीज़ें या वो, उसको पूरे उसमें सब कॉन्टिनेंट में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया और ऑर्डर कराया कि इसके ऊपर आप स्तूपास का कंस्ट्रक्शन करो। तो 2nd सेंचुरी BC तक बहुत सारे स्तूपास हो चुके थे, भैरूट में, सांची में, सारनाथ में, अमरावती में, ऐसे बहुत सारे स्तूपास जो है वो बिल्ट हो चुके थे, बट सारे स्तूपास जो है वो अभी तक अच्छे से प्रिजर्व नहीं हो पाए। स्तूपास कैसे बिल्ड किए जाते थे? देखिए, इंस्क्रिप्शंस, रेलिंग्स और पिलर्स के ऊपर, जो स्तूपा की रेलिंग्स और पिलर्स है जो आसपास की, उसके ऊपर हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले और उसमें डोनेशंस, डोनर्स के नाम भी मिले जिन लोगों ने स्तूपा के कंस्ट्रक्शन के लिए या उसके डेकोरेशन के लिए पैसे डोनेट करे थे। ठीक है, कुछ डोनेशंस किंग्स भी बनाए थे, जैसे सतवाहनाज ने भी डोनेशंस करे हैं, कुछ गिल्ड्स, श्रेणीज, ऑर्गेनाइजेशंस डोनेशंस करते थे, आइवरी वर्कर्स या आइवरी, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि आइवरी वर्कर्स थे जिन्होंने सांची के गेटवे के सांची का एक गेटवे को फाइनेंस करा था। ओके, बहुत सारे और डोनेशंस बनाए गए थे बाय ऑर्डिनरी मैन, विमेन, जो अपना नाम उसमें मेंशन सबका है, और कभी कभी वो अपने नाम मेंशन करते हैं, कभी कभी ऑक्यूपेशन, कभी कभी कहाँ से आए हैं, कभी कभी उनके रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स के भी नाम। भिक्खुज और भिक्खुनीज ने भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इन स्तूपास के बिल्डिंग के लिए। वाइवर स्तूपास बिल्ड, देखिए हम सोर्स देख लेते हैं। ये एक एक्सर्प्ट है महापरिनिब्बना सुत्त से, जो कि सुत्त पिटका का एक पार्ट है। तो बुद्धा जैसे ही वाज इन हिज फाइनल मोमेंट्स एंड ही वाज इन हिज फाइनल मोमेंट्स, तो वो ऐसे नीचे लेटे हुए थे एंड वो आनंद उनसे पूछता है बुद्धा से कि ओ लॉर्ड, अब हम आपके आपके रिमेन्स ऑफ द तथागत मतलब बुद्धा का अलग नाम था, उनको तथागत भी बोला जाता था। तो उनसे पूछते हैं कि अब हम आपके रिमेन्स से क्या करेंगे, आप एक बार आपकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद हम आपका क्या करेंगे, बॉडी का क्या करेंगे। तो बुद्धा ने उस पर रिप्लाई करा कि तुम परेशान मत करो, ओके, एंड देखो मेरी रिलिक्स का कुछ वो मत करो कि मेरी बॉडी से कुछ नहीं होना, मतलब मेरी उस पर इतना परेशान मत हो कि मेरी रिमेन्स का, मेरी बॉडीली पार्ट्स का, चीज़ों का क्या करें। तुम इन सबको छोड़ के सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो एंड सभी को मतलब बी स्ट्रॉन्ग, बी जेलस, और अपने खुद के पाथ पे चलो, अपना खुद के अच्छे के लिए करो। बट आनंद वाज लाइक नहीं, प्लीज़ आप बताइए हमें क्या करना चाहिए, क्या करें, आप इंस्ट्रक्शंस दीजिए। तो फिर थोड़ी सी फर्दर प्रेस करने के बाद बुद्धा ने रिप्लाई किया कि ओके ठीक है, एक जगह पर 4 क्रॉस रोड्स पर एक थूपा इज द पाली वर्ड फॉर स्तूपा, ओके। तो एक थूपा को इरेक्ट करो जिसमें तथागत के, मतलब जिसमें मेरे जो है वो रेलिक्स है, ठीक है। और जो भी, मतलब बुद्धा आगे बोलते हैं कि जो भी इन स्टूपास पे गार्लैंड यानी फूलों की माला या परफ्यूम या वहाँ पर आके कुछ सैल्यूटेशन करेंगे, वहाँ पे प्रेयर करेंगे या जो भी करेंगे, तो उनके लिए मतलब that shall long be to them for a profit and joy। तो मतलब जो भी वहाँ पर ऐसा कुछ करेगा तो उनको बहुत लंबे समय तक कुछ प्रॉफिट होगा, बहुत खुश रहेंगे वो, उनको हैप्पीनेस वगैरह मिलेगी, मन की शांति मिलेगी एंड ऑल दीज थिंग्स। सो ये चीज़ जो बुद्धा ने रिप्लाई करा था। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा जो था वो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है एक हीप, ओके। एक सिंपल सेमी सर्कुलर बाउंड ऑफ अर्थ होता है, सेमी सर्कुलर होता है वो, जिसके कहते हैं अंडा, ओके। तो सबसे पहले तो ये सिर्फ एक अंडा था, धीरे धीरे करके इसमें चीज़ें, एलिमेंट्स ऐड होती गई, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता गया, जैसे उस अंडा के आसपास राउंड एंड स्क्वायर शेप्स बनते गए। अंडा के ऊपर एक हर्मिका हो गई। हर्मिका जो है वो एक बालकनी लाइक स्ट्रक्चर है जो भगवान के घर को रिप्रेजेंट करता है, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये स्तूपा, ये जो है ये अंडा हो गया, दिस इज़ दी हर्मिका, ओके।
हर्मिका से ऊपर उठते हुए एक मास, ये हर्मिका यहाँ पर हो गया, ये देखिए हर्मिका, ये अंडा यहाँ पर, ये जो है इसको बोलते हैं यष्टि। यष्टि जो है उसको एक छतरी या अम्ब्रेला के साथ सराउंड किया जाता है, ठीक है। माउंट के आसपास एक ये देखिए यहाँ पर एक रेलिंग आपको दिखेगी जो कि सेक्रेट प्लेस को सेक्युलर वर्ड से अलग करती है, मतलब ये सेक्रेट प्लेस है और इसके बाहर जो है वो पूरी दुनिया है, वो अलग वर्ल्ड है। ये जो सबसे पहले स्तूपा जो है सबसे पहले सांची, भैरूट इन जगहों पर रखे गए थे और बहुत ही प्लेन थे, बहुत स्टोन रेलिंग्स, बहुत ज़्यादा तामझाम ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड बहुत ही रिचली कार्व करे गए थे और 4 कार्डिनल पॉइंट्स में इनको इन गेटवेज को इंस्टॉल किया गया था। देखिए ये 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 गेटवेज को चारों दिशाओं में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में कार्डिनल जो पॉइंट्स हैं उनको वो किया गया था। जो वर्शिपर्स हैं वो एंटर करते हैं ईस्टर्न गेटवे से, यानी यहाँ से ये ईस्टर्न गेटवे हैं, ओके। पूरे माउंट में एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूमते हैं, ओके, कीपिंग द माउंट ऑन द राइट। माउंट हमेशा उनके राइट में होगा। देखिए यहाँ से एंटर होकर अगर आप ऐसे घूम रहे हैं तो ऑफकोर्स आपका माउंट जो है वो हमेशा आपके राइट साइड में होगा, जो कि सन्स कोर्स थ्रू द स्काई, मतलब सन का जो कोर्स है वो ईस्ट से जैसे वेस्ट की तरफ जाता है उसी तरीके से उसको इमिटेट करते हुए ईस्ट से ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। बाद में ये जो माउंट ऑफ स्तूपास है इसको बहुत ही इलेबोरेटली कार्व करने लगे। पहले तो ये सिंपल होता था, धीरे धीरे करके इसमें बहुत ही इंट्रिकेट कार्विंग्स ऐड करने लगे, स्कल्पचर्स वगैरह, जैसे कि अमरावती या फिर शाहजी की ढेरी पेशावर पाकिस्तान में जो है यहाँ पर। तो इन जगहों पर जो स्तूपास है वो सांची के कंपैरिजन में और ज़्यादा इलेबोरेटली या इंट्रिकेटली डिज़ाइंड और कार्व्ड है। व्हाट आर द features of the building that are clearest in the plan? What are the features that are best seen in the elevation? देखिए क्या 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 क्लियर है, ये अंडा क्लियर है, हर्मिका क्लियर है, ये यष्टि क्लियर है, इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, ओके। यहाँ पर देखें तो हमें बालकनी बहुत क्लियरली समझ में आ रही है और गेटवे समझ में आ रहा है कि ये कहाँ पर है, इनकी डायरेक्शन कैसी है और हमें किस तरीके से गोल घूमना है, एंड कैसे हर्मिका इज़ इन दी सेंटर ऑफ द स्तूपा एट द टॉप। तो ये एलिवेशन में और प्लान में ये चीज़ें कुछ एलिवेशन में क्लियर में और कुछ प्लान में क्लियर है। Covering stupas, the fate of Amravati and Sachi. देखिए each stupa has a history of its own, as we have seen that some of these histories of how they were built, but there are histories of discoveries as well. And let us now turn to some of these. हर स्तूपा की अपनी एक हिस्ट्री, अपनी एक स्टोरी है, कैसे वो बने, क्यों बने, एंड इनफैक्ट ये स्टोरीज भी है कि वो कैसे डिस्कवर हुए। तो देखिए 1796 में एक लोकल राजा थे जिनको एक टेम्पल बनाना था और वो एक्सीडेंटली अमरावती में जो स्तूपा है उसके रूइंस पे स्टम्बल हो गए। मतलब अमरावती का स्तूपा बहुत अच्छे से प्रिजर्व नहीं था, वीक हो चुका था और ऑलमोस्ट अपने रूइंस में था। तो वो लोकल राजा अमरावती के स्तूपा पे एकदम स्टम्बल हो गए, उनको ये मिल गया। तो उन्होंने डिसाइड करा कि यार ये जो स्तूपा है इसके पत्थर को यूज़ कर लेते हैं, और उन्हें लगा था कि यार ये स्तूपा के अंदर कहीं ना कहीं ट्रेजर कुछ बरीड होगा, क्योंकि ये ऐसे हिल जैसा लग रहा है, माउंट जैसा, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। कुछ साल बाद एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिनका नाम था कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी का चैप्टर 7 में बहुत एम्फेसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो अमरावती की साइड पर आए। तो भले ही उन्होंने देखा कि पूरे स्तूपा का स्कल्पचर, मतलब पूरे स्तूपा के बहुत डिटेल्ड उन्होंने ड्राइंग्स बनाई, वो करी, बट ये इन रिपोर्ट्स को कभी पब्लिश नहीं किया गया। तो उन्होंने ये पीसेस ऑफ स्कल्पचर को एग्जामिन करा, उसकी ड्राइंग्स बनाई, बट कभी भी इनको पब्लिश नहीं किया गया। तो ये चीज़ फिर अमरावती की फिर वैसी ही रह गई। फिर फाइनली 1854 में वाटर एलियट जो थे वो कमिश्नर थे गुंटूर के, आंध्र प्रदेश का जो नाम था, वो अमरावती विजिट करते और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे स्कल्पचर पैनल्स को कलेक्ट किया और अपने साथ वहाँ से मद्रास ले गए। इसीलिए इनका नाम था एलियट मार्बल्स पड़ गया, क्योंकि वाटर एलियट ने इनको कलेक्ट करके मद्रास ले गए। उन्होंने ये भी डिस्कवर करा कि वेस्टर्न गेटवे के कुछ कुछ रूइंस जो कुछ वेस्टर्न वाला गेटवे जो उसका कुछ बचा हुआ स्ट्रक्चर था, उससे वो कंक्लूजन पे आए कि जो अमरावती का ये जो स्ट्रक्चर है ये बुद्धिस्ट स्तूपास में अभी तक का सबसे बड़ा और सबसे मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स है। मतलब अमरावती का ये जो स्तूपा है ना, ये सांची के स्तूपा या भैरूत के स्तूपा या शाहजी की डेरी, इन बाकी सब स्तूपास में से अमरावती का सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा मैग्निफिसेंट स्तूपास है अभी तक जितने भी बुद्धिस्ट स्तूपास बिल्ट हुए हैं सभी में। तो 1850s तक अमरावती की जो कुछ स्लैब्स है जो वाटर एलियट ले गए थे, ये दूसरे अलग अलग जगहों पर जाने लगे, जैसे कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कैलकाटा में ये कुछ पहुंच गए, कुछ तो इंडियन ऑफिस इन मद्रास पहुंच गए, कुछ तो लंदन तक पहुंच गए। तो
ये मतलब अनयूजुअल नहीं था ऐसा ये पाना कि यू नो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स या ब्रिटिश बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स के गार्डन्स में ये अमरावती के स्टूपास, उसके स्कल्पचर्स, उसके कुछ पार्ट जो है वो ऐसे उन ब्रिटिश गार्डन्स में, मॉन्यूमेंट्स के गार्डन्स में ऐसे सजे हुए अडॉर्न कर रहे हैं। तो इस तरीके से हुआ, इस वजह से हुआ क्या था कि पूरा डिसेंबल हो गया था। एक हमारी जो इतनी बड़ी एक अमरावती पे जो स्तूपा बना हुआ था, इट वॉज जस्ट ब्रोकन डाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दैट, एंड किसके लिए, गार्डन्स में सजाने के लिए एंड ऑल दैट। तो बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इस वजह से जो है वो लॉस्ट हो गई थी। इनफैक्ट ये भी था कि अगर कोई भी नया ऑफिशियल आता था ना, तो वो क्या करता था, धीरे धीरे करके एक एक हिस्सा स्टूपा का ले जाके और कहीं दूसरी जगह यू नो सजा देता था, अपने गार्डन में, अपने कहीं पर भी, अपनी यू नो किसी और जगह पर यू नो मैग्निफिसेंस और वो लगाने के लिए। तो इस वजह से बहुत ही प्रॉब्लम्स आई कि पूरा जो स्तूपा है वो पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया, अच्छे से वो नहीं हो पाया। वन ऑफ द फ्यू मैन जिनका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था, वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था H.H. कोल। H.H. कोल ये लिखते हैं कि इट सीम्स टू मी अ सुसाइडल एंड इनडिफेंसिबल पॉलिसी टू अलाउ द कंट्री टू बी लूटेड ऑफ ओरिजिनल वर्क्स ऑफ एंशिएंट आर्ट। ये एक ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका थोड़ा सा सेट ऑफ यू नो पॉइंट ऑफ व्यू अलग था, एंड ये बोलते हैं कि ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि हमारे कंट्री के ओरिजिनल वर्क्स को, अमरावती जैसे इतने यू नो इतनी ओरिजिनल, इतनी ज़्यादा हाईली वैल्यूड, एक बहुत ही रिच कल्चरल चीज़, एक वो है हमारी कंट्री की हेरिटेज है, एंड इसको इस तरीके से ले जाना, लूटना, मतलब अलग अलग जगह पर आप अपने पर्पसेस के लिए, दैट इज़ नॉट राइट। तो उनका बिलीफ ये था कि जो म्यूज़ियम्स में अगर आपको चाहिए तो म्यूज़ियम्स में उसके प्लास्टर कास्ट यू नो कॉपीज़ वगैरह होना चाहिए, उनके ओरिजिनल पीसेस तो वहीं रहने चाहिए जहाँ से वो मिले हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कोल ने जो बोला वो यू नो सक्सीड नहीं हो पाया, कोल जो चाहते थे वो सक्सीड नहीं हो पाया, एंड वो अमरावती की अथॉरिटीज़ को ये कन्विंस नहीं कर पाया कि हमें इस स्ट्रक्चर को, जो ये स्तूपा बना हुआ है, इसको इसी तरीके से प्रिजर्व करना चाहिए जैसे कि सांची को करा था। तो ये चीज़ हो नहीं पाया। अब बात आती है कि फिर सांची कैसे सर्वाइव हो गया अगर अमरावती नहीं हो पाया। तो इसका ये एक रीज़न हो सकता है कि अमरावती जो है ना, ये बहुत पहले डिस्कवर हो चुका था, और कब मतलब कितने पहले, जब स्कॉलर्स को ये समझ में आया कि ये जो चीज़ें हमें मिल रही है इसकी क्या वैल्यू है, ये इनका मतलब इसकी वैल्यू वो करना, इसकी इम्पोर्टेंस की हमें ये ऐसे ही प्रिजर्व करके रखें ताकि हम इनकी इससे स्टोरीज कंस्ट्रक्ट कर सकें, या हमारे कितनी इम्पोर्टेंस की है। स्कॉलर्स ये चीज़ समझते उसके पहले ही अमरावती डिस्कवर हो चुका था, तो इस वजह से हो नहीं पाया। सांची डिस्कवर हुआ था 1818 में। तो जब 1818 में सांची की डिस्कवरी हुई थी, सांची पे स्तूपा हुई थी, तो उसमें से 4 गेटवे में से 3 अभी भी खड़े हुए थे। ओके, मतलब प्रॉपर वो गिरे नहीं थे, टूटे नहीं थे। 4th जो था वो उसी जगह पर पूरी प्रॉपर कंडीशन में था, पर बस वो गिरा हुआ था, यू नो गुड कंडीशन में था, वो टूटा फूटा नहीं था, बट वो बस खड़ा ना होकर और वो ऐसे गिरा हुआ था। तो इसके बावजूद इट वाज सजेस्टेड कि गेटवे जो है पेरिस या लंदन लिया जाए, कि मतलब यू नो ऐसा बोला था कि वो गेटवे बिल्कुल ठीक था, उसको चाहते तो वापस ठीक कर देते, पर ये सजेशन आ रही थी कि अरे इसको तो पेरिस के म्यूज़ियम में ले जाओ, लंदन के म्यूज़ियम में ले जाओ। बट फाइनली बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उसको होने नहीं दिया, एंड फाइनली इस वजह से आज सांची स्तूपा जैसा है वो वैसा ही है। एंड दूसरी तरफ जो महाचैत्य, जो अमरावती स्तूपा जो महाचैत्य है, वो जितना सिग्निफिकेंट, जितना मैग्निफिसेंट था, वो अपनी ग्लोरी तो लॉस्ट कर चुका है, लूज़ कर चुका है, लेकिन उसके कंपैरिजन में सांची बाय फॉर्च्यून वेल प्रिजर्व्ड है। इन सीटू मीन्स ऑन द स्पॉट। ओके, ये फिगर यहाँ पर भी देख लीजिए, दिस इज़ द ईस्टर्न गेटवे सांची, नोटिस द वाइब्रेंट स्कल्पचर। ये देख लीजिए कितनी प्रॉपरली इसमें यू नो स्कल्पटिंग की गई है, कार्विंग की गई है। एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो है दीज हम ये आगे पढ़ेंगे कि इन सिम्बल्स का मतलब क्या है। ये जो सर्कल्स दिख रहे हैं, दीज आर लाइक दस, हम ऐसा यू नो स्पेक्यूलेट करते हैं कि ये एक जैसे कि स्क्रिप्ट के रोल्स जैसे हैं। हम पेपर को ऐसे दोनों तरफ से फोल्ड करते हैं फिर खोलते हैं ना, सो इट्स लाइक समथिंग लाइक दैट। स्कल्पचर, अभी हमने देखा कि कैसे यू नो सांची स्तूपा से और अमरावती से कैसे ऐसी प्लानिंग हो रही थी कि इन स्कल्पचर्स को, ये देखिए यहाँ से जो स्कल्पचर्स बने हुए इनको हटा के दूसरी जगह लिया जाए, यूरोप तक वहाँ ले आया जाए। बट ये उस वजह से हुआ क्योंकि जिन लोगों ने इसको देखा, डिस्कवर किया, उन्हें ये बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही ऐसे लगे, तो उनका ये लगा कि यार इसको यहाँ नहीं रह के हम तो हमारे काम में लेंगे, हम डेकोरेशन वगैरह में यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर ये चीज़ अच्छी नहीं होती तो कौन ले जाता, राइट?
सो बिकॉज दे वर ब्यूटिफुल, बिकॉज दे सीम्ड सो ब्यूटिफुल एंड वैल्यूएबल, तभी ये लोगों को ग्रीड हुआ मन में कि यार ये तो हम ले जाए हमारे पर्पसेस के लिए। तो अब हम देखते हैं, कुछ इन पे क्लोजली देखेंगे एंड हम कोशिश करेंगे जानने की कि ये जो बने हुए हैं, ये जो स्कल्प्टेड, इनका मतलब क्या है। स्टोरीज इन स्टोन, हम वंडर कर रहे होंगे, स्टोरी टेलर्स कैरिंग स्क्रोल्स, जिन्हें बोलते हैं चरण चित्रास ऑफ क्लॉथ और पेपर। हम अपने देखे होंगे ना ऐसे चरण चित्रास, जैसे कि आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं स्टोरी टेलर्स देखे कि वो दोनों तरफ से ऐसे पेपर को रोल कर देते हैं ना, एक स्क्रोल जैसा वो बन जाता है, ठीक है। और उसके अंदर पिक्चर्स होते हैं जो कि पिक्चर्स जो है वो एक प्रॉपर स्टोरी बनाते हैं। तो ये अगर हम देखें, ये जो सर्कल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये ऐसा ही लगता है कि ये जो पूरा ये वाला जो फिगर है, यहाँ पर आपको फिगर 4.13 यहाँ पर दिखाया गया है, ये यहाँ पर ये 4.13 जो है ये रूरल सीन हमें देखने को लगता है। कि पहले तो हमें लगता है कि ये रूरल सीन है, लेकिन बाद में जब आर्ट हिस्टोरियंस ने इसको स्टडी करा, जो टेक्स्ट है उसके साथ इसको कंपेयर करा, तब पता चला कि ये विसांतरा जताका से एक सीन है। और ये एक जेनरस प्रिंस के बारे में एक वो है जो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब एक बहुत ही वेल्दी जेनरस प्रिंस है जो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया, ब्राह्मण को एक सब कुछ दे दा के, और एक फॉरेस्ट में चला गया अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के साथ, सब कुछ छोड़ के, मोह माया वगैरह छोड़ के। तो ये जो केस है, हिस्टोरियंस जो है वो ऐसे कोशिश करते हैं कि जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है उनको इन स्कल्पचर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो टेक्स्ट समझ में आता है कभी कभी, या कभी कभी ऐसा होता है कि इन स्कल्पचर्स को देखते हैं फिर टेक्स्ट पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि ये स्कल्पचर में क्या बना हुआ है। तो ये दोनों तरफ से ये काम होता है। आप ये भी देख सकते हैं, देखिए, डू यू थिंक द स्कल्पचर्स एज चाची वांट टू डिपिक्ट अ स्क्रोल बीन अनफर्ल्ड। ये देखिए, ऐसा लगता है कि हो सकता है ये स्क्रोल जैसा है कि स्क्रोल खुल रहे हैं दोनों तरफ से, ये ऐसे गेटवे लगते हैं। सिम्बल्स ऑफ वर्शिप, आर्ट हिस्टोरियंस जो है उनको सभी हैजियोग्राफीज़ वगैरह पहले पढ़नी पड़ी। उन्होंने सारे बुद्धिज़्म रिलेटेड जितने भी टेक्स्ट वगैरह थे उनको सब पहले पढ़ने पड़े, तब जाके वो ये समझ पाए कि यार इन सिम्बल्स का जो इस पे बने हुए हैं इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी हम देखेंगे, जैसे कि हैजियोग्राफीज़ के अकॉर्डिंग बुद्धा को एनलाइटमेंट मिली थी एक ट्री के अंदर मेडिटेट करते हुए, ठीक है। तो बहुत अर्ली स्कल्पचर्स जो थे उन्होंने कभी भी बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया, जबकि वो कैसे दिखाते थे बुद्धा को, इन सिंबल्स के थ्रू दिखाते थे। जैसे कि एक एम्प्टी सीट है, ओके, एम्प्टी सीट मतलब बुद्धा मेडिटेशन करे इस तरीके से दिखाते हैं। एंड द स्तूपा एक रिप्रेजेंटेशन था महापरिनिब्बना का, ठीक है। एक और सिंबल जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता था वो था व्हील। तो व्हील जो था वो बुद्धा का फर्स्ट सर्मन को सिंबलाइज करता था जो उन्होंने सारनाथ में दिया था। तो मैं आपको यहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए, इन स्तूपास पे, इन स्कल्पचर्स पे, ये जितनी भी वर्क्स हैं ये एक स्टोरी बताते हैं। दे आर मेड फॉर अ पर्पस। इनमें जो भी बना हुआ है एक एक एलिमेंट जो है वो एक पर्पस है इनका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें देखेंगे, ठीक है, ये है फिगर 4.14, दिस इज फिगर 4.15 एंड दिस इज फिगर 4.16। अब 4.16 में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक व्हील बना हुआ है, ये पूरा व्हील है, इसके अलावा यहाँ पर और कोई कुछ नहीं दिख रहा है बैठा हुआ। तो इसका मतलब ये कि स्कल्पचर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया है, ओके, ये बुद्धा के फर्स्ट सरमन को डिपिक्ट कर रहा है। या फिर आप इसमें देखेंगे ये क्या दिखा रहा है, एक स्तूपा दिखा रहा है। तो स्तूपा को वर्शिप करना मतलब बुद्धा ने एनलाइटनमेंट ले ली, महापरिनिब्बना वो डिपिक्ट कर रहा है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक ट्री बना हुआ है। अब इस ट्री के अंदर देखिए सीट जो है वो खाली है, इस पर कोई नहीं बैठा हुआ है, कोई वो नहीं है, लेकिन लोग जो है वो इस ट्री को वर्शिप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि उन्होंने बुद्धा को ज़रूरी नहीं है ह्यूमन फॉर्म में दिखाया, उन्होंने बुद्धा को थ्रू सिम्बल्स दिखाने की कोशिश की कि अगर ट्री है तो मतलब ये एक बोधि ट्री, क्योंकि वर्शिप कर रहे हैं सब लोग इस ट्री को, तो मतलब ये बोधि ट्री है, वही ट्री है जहाँ पर नीचे बैठकर बुद्धा ने एनलाइटनमेंट उनको मिली थी। तो ये इन सिंबल्स के थ्रू, ज़रूरी नहीं कि हर बार बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में ऐसे आँख नाक इसके वो ही बताए, इन सिंबल्स के थ्रू भी वो लोग बुद्धा का प्रेजेंस बताते थे। तो ये ऑब्वियस है, ये स्कल्पचर्स को हम लोग ऐसे तो समझ नहीं सकते ना। आप देखो, जैसे कि अगर हमारे पास ये टेक्स्ट यहाँ रिटर्न नहीं होता, तो आपने ये व्हील देखा, इस व्हील से तो हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि व्हाट द व्हील इज ट्राइंग टू डिपिक्ट। तो ये इट वाज विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्स्ट्स, ये जो टेक्स्ट लिखे गए थे, ये सारे हिस्टोरियंस ने इन टेक्स्ट को बहुत केयरफुली रीड किया, तब उन्हें समझ में आया कि ये जो सिंबल्स हैं इनका मतलब क्या है।
ठीक है। फॉर इंस्टेंस द ट्री डज नॉट स्टैंड सिंपली फॉर अ ट्री बट सिम्बलाइजेज एन इवेंट इन द लाइफ ऑफ द बुद्धा। ट्री, पेड़ का मतलब सिर्फ पेड़ नहीं है, वो पेड़ बुद्धा की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। इन सिम्बल्स को समझने के लिए हिस्टोरियंस को पहले जितने भी वर्क्स ऑफ आर्ट है उनको देखना पड़ा, हर उसको समझना पड़ा, टेक्स्ट को पढ़ना पड़ा, तब जाकर वो मेकआउट कर पाए कि इनका मतलब क्या है। पॉपुलर ट्रेडिशंस, और भी ऐसे स्कल्पचर्स है सांची पर जो कि डायरेक्टली बुद्धिस्ट आइडियाज से रिलेटेड नहीं है। ओके, जैसे सांची स्तूपा वगैरह, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। जैसे कि ब्यूटीफुल विमेन जो थी एज ऑफ द गेटवे पे स्विंग करते हुए, यहाँ पर आपको ये फिगर दिख रहा है, द वुमन एट द गेट। तो इनिशियली तो समझ में नहीं आया कि यार इसका मतलब क्या है, बुद्धिज्म से इसका क्या रिलेशन है, ब्यूटीफुल विमेन ऐसे हैंग कर रही है और वो कर रही है। तो उनको लगा कि यार क्या मतलब, क्या पता है इसका मतलब क्या है, और इसका तो वर्ल्ड से रिनाउंस करने का और संन्यास लेने से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। बाद में जब उन्होंने टेक्स्ट को पढ़ा, जितने टेक्सचुअल वर्क्स थे उनको पढ़ा, तब समझ में आया कि दिस इज अ डिपिक्शन ऑफ शलाभंजिका। शलाभंजिका एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब ये एक पॉपुलर बिलीफ है, ये वो एक वुमेन है जिसके टच से पेड़ों में भी फूल खिलते हैं, फ्रूट आते हैं, मतलब एक ऑस्पिशियस सिंबल टाइप है ये। ओके, जो कि डेकोरेशन ऑफ स्तूपा में ऐड किया गया है, मतलब उसके इनके एक टच से, इनके उससे बहुत अच्छी चीज़ें होती है, ऑस्पिशियस चीज़ें होती है। तो इसका डायरेक्ट लिंक तो बुद्धिज़्म से नहीं है, लेकिन ये सिंबल भी इम्पॉर्टेंट है उनके आइडियाज़ को डिपिक्ट करने के लिए। ये जो शलाभंजिका मोटिव है, कुछ लोगों को लगता है कि मतलब that many people who turn to Buddhism enriched it with their own pre-Buddhist and even non-Buddhist belief, practices and ideas। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो शलाभंजिका जैसे सिम्बल्स हैं ये उन लोगों ने बनाए हैं, या उन लोगों की वो है कि जो बुद्धिज़्म मतलब जो बुद्धिज़्म में टर्न हो गए, बुद्धिस्ट बन गए, लेकिन उसके पहले के कुछ ऐसे आइडियाज़ उन्होंने बुद्धिज़्म के साथ वो अपने साथ लिया और उसमें इंटीग्रेट कर दिया। और भी ऐसे कुछ मोटिव्स है जो बार बार हमें देखने को मिलते हैं, स्कल्पचर्स है तो ऐसा हमें बहुत क्लियरली ऐसा लगता है कि यार कुछ ऐसे स्कल्पचर्स, ऐसे मोटिव्स, ऐसे डिज़ाइंस और पैटर्न्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से नहीं है, जो बाकी ट्रेडिशन से लोग जब बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए तो वो अपनी ट्रेडिशन की चीज़ को उन्होंने बुद्धिज़्म में इंटीग्रेट करके और इस तरीके से डिस्प्ले करा। जैसे शलाभंजिका की इमेज के अलावा एक और है एनिमल्स का डिपिक्शन। ठीक है, इन एनिमल्स में इंक्लूड होते हैं एलिफेंट्स, हॉर्सेज, मंकी, कैटल, ये सभी एनिमल्स बहुत क्लियरली हमें एलिफेंट वगैरह देखने को मिलते हैं। तो जटाकास में तो बहुत सारी एनिमल की स्टोरीज़ हैं, ठीक है, जो कि सांची पे अच्छे से बने, लेकिन बहुत सारी ये जो एनिमल्स है ये लाइवली सीन्स क्रिएट करने के लिए भी, ताकि व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर सके, मतलब इनका पर्पस अलग था। एंड एनिमल्स को सिम्बल्स ऑफ ह्यूमन एट्रीब्यूट्स भी कभी कभी दिखाया जाता था। कैसे, देखो, जैसे एलिफेंट जो था वो अगर कहीं एलिफेंट बना हुआ है तो वो एक डिपिक्शन था ह्यूमन स्ट्रेंथ और विजडम का, क्योंकि बोलते हैं ना कि एलिफेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट। तो अगर कहीं एनिमल बना है तो ऐसा भी हो सकता था कि एनिमल इज अ डिपिक्शन ऑफ स्ट्रेंथ एंड विजडम। तो ह्यूमन के जो एट्रीब्यूट्स और पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होती हैं उसको दिखाने के लिए भी कभी कभी इन एनिमल्स को ड्रॉ किया जाता था। जैसे ये गजलक्ष्मी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज़ अ पेंटिंग फ्रॉम अजंता। ठीक है, ये जो सीटेड फिगर है ये देखिए, इन सब इसको सर्व कर रहे हैं। दिस इज़ अ सरपेंट एंड सांची, अगेन एक सांप है, तो ये सांप का क्या रिलेशन है वो अब हम पढ़ेंगे। पेंटिंग्स फ्रॉम द पास्ट, बहुत सारे स्टोन स्कल्पचर्स जो है वो आज भी इन स्पाइट ऑफ द लॉन्ग टाइम कि उन्होंने सर्वाइव कर लिया है, और इसीलिए हिस्टोरियंस के लिए हमारे लिए अवेलेबल है। अदर विजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग पेंटिंग्स वर ऑल्सो यूज इन द पास्ट। तो स्टोन स्कल्पचर्स तो यूज़ किए जाते थे, पेंटिंग्स भी डिपिक्शन के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे अजंता, जो कि महाराष्ट्र में अजंता केव्स है, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स सर्वाइव है, और ये ऑलमोस्ट मतलब मोस्ट फेमस पेंटिंग्स में से है। जो पेंटिंग्स अजंता ये बनी हुई है, ये जटाकास की स्टोरीज को डिपिक्ट करती है। These include depiction of courtly life, processions, men and women at work and festivals। ये जो आर्टिस्ट है उन्होंने एक टेक्निक ऑफ शेडिंग यूज़ किया है, जिससे वो फिगर्स को 3 डिमेंशनल क्वालिटी देते हैं। 3D क्वालिटी दिखाने के लिए एक शेडिंग की एक नई टेक्निक यूज़ की है। एंड ये कुछ पेंटिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा नेचुरलिस्टिक भी हमें कुछ कुछ देखने को मिलती है। तो अजंता की ये जो पेंटिंग्स का वर्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए चीज़ों को समझने का। एक और मोटिव है, जैसे हमने अभी ये एलिफेंट का मोटिव देखा या फिर हमने शलाभंजिका का मोटिव देखा, ऐसे ही एक और मोटिव है एक वुमेन का। ये देखिए, जो कि लोटस से सराउंडेड है,
ठीक है, एंड जिसके ऊपर एलिफेंट्स जो है वो इस तरीके से पानी उसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं और एक जैसे एक अभिषेक परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, तो कुछ हिस्टोरियंस को लगा कि शायद हो सकता है ये माया है, माया मतलब बुद्धा की मदर है। कुछ लोग उसको पॉपुलर गॉडेस गजलक्ष्मी के साथ रिलेट करते हैं, विच इज़ लिटरली द गॉडेस ऑफ गुड फॉर्च्यून, जो कि एलिफेंट्स के साथ एसोसिएटेड है, गजलक्ष्मी। तो ये भी पॉसिबल है कि जो डेविटीज़ है वो दोनों इसको माया भी समझते थे और गजलक्ष्मी भी समझते थे। तो इस तरीके से ये सिंबल्स जो है हम उसको विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट और उससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन पर्टिकुलर सिंबल्स का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। एक और सिंबल की बात करें हम, जैसे यहाँ पर एक सर्पेंट जो कि बहुत सारे पिलर्स पे हमें मिलता है। ये मोटिव जो है ये पॉपुलर ट्रेडिशंस विच वर नॉट ऑलवेज रिकॉर्डेड इन टेक्स्ट, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ टेक्स्ट में रिकॉर्ड किए जाए। Interestingly, one of the earliest modern art historians, James Ferguson, considered Sachi to be a center of tree and serpent worship. He was not familiar with Buddhist literature, most of which had not yet been translated, and arrived at his own conclusion by studying only the images on their own. आपको समझ में आया यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वो ये कहने की कोशिश करी कि एक आर्ट हिस्टोरियन था जेम्स फर्गसन, जब उन्होंने सांची स्तूपा को देखा तो उस पर उन्होंने ये ट्री एंड सर्पेंट के इतने सारे सिंबल्स देखे, तो उन्हें ऐसा लगा कि यार ये जो सांची स्तूपा है इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि ये ट्री और सर्पेंट वर्शिप के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इस टाइम तक बुद्धिस्ट टेक्स्ट वगैरह इतने जो है वो उनको डिसाइफर नहीं कर पाया था या फिर ट्रांसलेट नहीं हुए थे वो, तो वो उन्होंने अपने उस पर सिर्फ पिक्चर्स देख के उनका कुछ और ही मीनिंग निकाला। तो दैट शोज़ कि यार पिक्चर्स देखना, उनको समझना एंड टू रिलेट इट टू टेक्सचुअल ट्रेडिशंस कितना इंपॉर्टेंट है, वरना उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। रिलीजियस ट्रेडिशंस, द डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज़्म। अब फर्स्ट सेंचुरी सीई तक ये एविडेंस होता है कि बुद्धिस्ट आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस में हमें कुछ चेंज देखने को मिलता है। जो अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स थी वो ग्रेट इंपॉर्टेंस देती थी कि सेल्फ एफर्ट करो, खुद से एफर्ट करो, निब्बाना को अचीव करो। इसके अलावा बुद्धा जो थे वो एक ह्यूमन बीइंग जैसे रिकॉर्ड किए जाते थे, जिन्होंने अपनी लाइफ में अपने एक्शंस और खुद की एफर्ट्स के थ्रू उन्हें एनलाइटमेंट में मिला और निब्बाना को अचीव करा। धीरे धीरे ये आइडिया जो है एक सेवियर जैसा इमर्ज हो गया, मतलब ये आइडिया चेंज हो गया। ये बिलीव होने लगा कि दैट उन्होंने ये वो करा कि जिन्होंने सैल्वेशन को इंश्योर करा, मतलब ये कॉन्सेप्ट होने लगा कि बोधिसत्ता का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया और बुद्धा को एक ह्यूमन बीइंग की बजाय एक सेवियर जैसे देखने लगे कि यार मतलब जैसे कि कोई अवतार है, कोई ये है, उनको मतलब पहले से ही देखने लगे कि वो एक ह्यूमन नहीं थे, वो तो पहले से ही कोई एक स्पेशल बीइंग थे। बोधिसत्ता का एक कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगा। बोधिसत्ता जो थे वो परसीव होते डीपली कंपैशनेट बीइंग्स जो अक्यूमुलेट करते थे मेरिट थ्रू देयर एफर्ट्स बट यूज्ड दिस नॉट टू अटेन निब्बाना and thereby abandon the world but to help others। बोधिसत्ता का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। बोधिसत्ता का क्या कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, मतलब बोधिसत्ता जो थे वो बहुत ही कंपैशनेट बीइंग्स थे। वो लोग क्या करते थे, अच्छा काम करते थे, मेरिट को वो करते थे, लेकिन उसको मोक्ष के लिए यूज़ नहीं करते थे, उसको दूसरों की मदद करने के लिए यूज़ करते थे, अपने अच्छे कर्मों को या अच्छी चीज़ों को जो उनके पास है। तो बुद्धा और बोधिसत्ता की इमेजेस बनने लगी, उसको वर्शिप होने लगी और ये बुद्धिज़्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया ट्रेडिशन का। तो ये जो नया वे ऑफ थिंकिंग था, जो इसमें जो चेंज आया था थिंकिंग का, इसको बोलते थे महायान, विच लिटरली मीन्स द ग्रेट व्हीकल। तो जो लोग महायान ट्रेडिशन को अडॉप्ट करते थे वो लोग दूसरा जो पुराना वाला ट्रेडिशन था ना, जिसमें बुद्धा एक ह्यूमन देखे जाते थे और उसको कहे जाते थे हीनायान या हीनायान यानी लेसर व्हीकल, तो वो उसको थोड़ा सा कंटेम्प टाइप करते थे कि जैसे उसको लुक डाउन अपॉन करते थे। हीनायान और थेरावड़ा, सपोर्टर्स ऑफ महायान रिगार्डेड अदर बुद्धिस्ट एज फॉलोअर्स ऑफ हीनायान। However, followers of the older tradition described themselves as Theravadins, that is, those who followed the path of old respected teachers, the Theras। तो जो लोग महायान के ट्रेडिशन को जो नया चेंज आया था उसको फॉलो करते थे, वो लोग पुराने फॉलोअर्स को हीनायान बोलते थे, जबकि जो हीनायान जो मतलब जो एक्चुअल लोग थे वो अपने आप को हीनायान ना बोला के थेरावदिन्स बोलते थे। मतलब वो लोग जिन्होंने जो पुराने टीचर जो थेरास जो इनिशियली हुए थे उनके पाथ पे चल रहे हैं, वो अपने आप को इस तरीके से रिगार्ड करते थे। तो हीनायान was the term used by the Mahayans for the other people and हीनायान जो थे वो अपने खुद के लिए थेरावडिन्स यूज करते थे।
ये स्कल्पचर देखिए, ये बुद्धा का एक इमेज है, मथुरा से 1st सेंचुरी सी। देखिए बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। आप अगर इसके पहले भी बियॉन्ड दी वर्ल्डली प्रेशर्स जो महावीरा वाला पार्ट जो हमने जैनिज्म का पार्ट देखा है 3rd पार्ट, उसमें भी आप देखोगे तो ये जो मथुरा का स्कल्पचर है बहुत इसके कुछ ऐसे डिस्टिंक्ट फीचर्स है कि हम मेक आउट कर पा रहे कि यस दे बिलोंग टू द सेम प्लेस। द ग्रोथ ऑफ पुराणिक हिंदुइज्म। अब हम थोड़ा सा अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं, बुद्धिज्म से थोड़ा सा हिंदुइज्म पर शिफ्ट हो रहे हैं। ये जो सेवियर का नोशन था कि यार बुद्धा जो थे वो तो एक अवतार बन के आए थे धरती पर और जनजाति को या इंसानियत को बचाने के लिए और हमें एक रास्ता देने के लिए कि ऐसे वो करना है एंड दिस एंड दैट, ये बुद्धिज्म को यूनिक नहीं था। ऐसे सिमिलर आइडियाज जो थे वो हिंदुइज्म में भी डेवलप हुए थे। इसमें इंक्लूड होते हैं वैष्णविज्म, एक ऐसा फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म जिसमें विष्णु को प्रिंसिपल डीटी के जैसे वर्शिप किया जाता है, और एक और था शैविज्म जिसमें प्रिंसिपल डीटी जो है वो शिवा होते हैं। तो है दोनों हिंदुइज्म का ही पार्ट, लेकिन वैष्णविज्म में वो लोग विष्णु को प्रिंसिपल डीटी मानते हैं और शैविज्म में शिवा को प्रिंसिपल डीटी मानते हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्शिप में डेवोटी और गॉड के बीच का जो बॉन्ड है उसको भक्ति के रूप में, डिवोशन के रूप में, मतलब उस तरीके से कि टोटल उसको सरेंडर हो जाए, भक्ति हो जाए, उस रूप में उसको देखा जाता था। वैष्णविज्म के केस में जो कल्ट्स थे वो विष्णु के 10 अवतार के अराउंड हुए थे, मतलब विष्णु के 10 अवतार रिकग्नाइज किए गए थे वैष्णविज्म उसमें। और ये 10 अवतार मतलब ऐसे थे कि जो भगवान विष्णु है वो 10 अलग अलग अवतारों से धरती पर आए थे ह्यूमंस को बचाने के लिए, वर्ल्ड को बचाने के लिए। जब भी इसमें कुछ इविल फोर्सेस या डिसऑर्डर का, डिस्ट्रक्शन का कोई भी थ्रेट था तो इस दुनिया को बचाने के लिए वो ऐसे अवतार लेकर धरती पर आए थे। तो ये है कि ये अलग अलग अवतार अलग अलग जगहों पर पॉपुलर है, कहीं पर कौन सा अवतार पॉपुलर है, कहीं पर कौन सा अवतार पॉपुलर है। तो हर एक लोकल फॉर्म को रिकॉग्नाइज करना है डीटी का, मतलब ये उन्होंने मिलकर एक यूनिफाइंग और बड़ा रिलीजियस ट्रेडिशन को क्रिएट कर दिया। इसमें से कुछ ऐसे फॉर्म्स थे जो स्कल्पचर्स में भी बनाए जाते थे, जैसे बाकी डीटीज़ के भी थे। जैसे शिवा जो थे उनको कभी कभी लिंगा के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता था, कभी कभी ह्यूमन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था। तो ये सारे रिप्रेजेंटेशंस जो थे ये एक सेट ऑफ आइडियाज़ को डिपिक्ट करते थे अबाउट द डीटीज़ और उनके एट्रीब्यूट्स सिंबल्स के थ्रू, मतलब उनके सिर, उनकी ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स, आयुधास मतलब जो वेपन्स और ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट जैसे कि चक्र या फिर शंख, ये सब चीज़ें जो अपने हाथ में कैरी करते हैं, वो कैसे बैठे हैं। तो इन सब चीज़ों के थ्रू ये जो थी वो एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ आइडियाज़ को डिपिक्ट करती थी। हर चीज़ कि जैसे हम विष्णु के ऊपर देखते तो ऐसे सांप बने हुए रहते हैं, या फिर शिवा का देखते तो उनके गले में सांप रहता है और सिर के ऊपर चंद्रमा रहता है, हाथ में डमरू रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक डीटी के रिप्रेजेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती थी। ये देखिए, द वराहा और बोर अवतार ऑफ विष्णु रेस्क्यूइंग द अर्थ गॉडेस अईहोल, कर्नाटका 6th सेंचुरी। कर्नाटका अईहोल में है, 6th सेंचुरी सी का एक स्कल्पचर है। अब इसमें ये देखिए, ये जो है ये वराहा अवतार है विष्णु का, और ये जो है वो अर्थ गॉडेस है। तो प्रपोर्शन ऑफ द फिगर क्या सजेस्ट करता है, यही सजेस्ट करता है कि ये जो है प्रिंसिपल डीटी सबसे बड़े, सबसे ताकतवर, पावरफुल है। तो ये विष्णु के वराहा अवतार है, वो पूरी धरती को बचा रहे हैं। और देखिए जो सांप है और ये जितने भी ये सब लोग हैं, ये इनके पैर में ऐसे इनको वर्शिप कर रहे हैं, इनके ऐसे वो करे हुए हैं। इन स्कल्पचर्स का मीनिंग समझने के लिए हिस्टोरियंस को सबसे पहले इनके पीछे की स्टोरीज़ के साथ फेमिलियर होना पड़ता है, जो कि बहुत सारी स्टोरीज जो है वो पुराणाज में, उनको पुराणों में देखने को मिलती है, जो कि ब्राह्मण्स ने कंपाइल करी थी 1st मिलेनियम यानी 1000 BC के अराउंड में। तो they contained much that had been composed and been in circulation for centuries, including stories about gods and goddesses. तो पुराणों में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है जो हज़ारों सालों से सर्कुलेट होती आ रही है। जनरली वो लिखी गई थी मतलब सिंपल संस्कृत वर्ड्स में, ताकि ऑर्डिनरी लोग भी उसको समझ सके, पढ़ सके। इनफैक्ट ये जो थे, इन पुराणों को विमेन और शूद्रास भी पढ़ सकते थे जिनको वैदिक लर्निंग का एक्सेस नहीं था। मतलब विमेन और शूद्रा जो थे वो वेदास को एक्सेस नहीं कर सकते थे, लेकिन ये पुराणों से जितनी भी कहानी थी वो ये भी पढ़ सकते थे, इसको एक्सेस कर सकते थे। दिस इज़ एन इमेज ऑफ दुर्गा, महाबलीपुरम, तमिलनाडु 6th सेंचुरी। बहुत इसमें क्लियर तो नहीं दिख रही है हमें कि हम फिगर मेकआउट नहीं कर रहे, बट मोस्ट प्रोबेबली ये है दुर्गा एंड ये रहे इनके वो सवारी, आई थिंक शेर या जो भी है, एंड ये उनके आसपास सब हैं। आइडेंटिफाई द वेज इन विच द आर्टिस्ट हैव डिपिक्टेड मूवमेंट। कैसे डिपिक्ट कर रहा है मूवमेंट, देखिए ये पैर, हाथ, ऐसे फ्लोइंग सा मूवमेंट लग रहा है, हाथ पैर जो है वो सब कितने
मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ते हुए, झुके हुए हैं, उनका सिर कैसे टिल्टेड है, हाथ कैसे टिल्टेड है, पैर कैसे हैं. तो फाइंड आउट मोर अबाउट द स्टोरी डिपिक्टेड इन दिस स्कल्पचर. यू कैन डू दैट ऑन द इंटरनेट. पुराणों में जो कुछ लिखा हुआ है वो लोगों की इंटरेक्शन से इवॉल्व हुआ है. जो पंडित, मर्चेंट वगैरह, ये जो लोग प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करते थे, अपने आइडियाज़ को शेयर करते थे, बिलीव्स को शेयर करते थे, तो उनकी इंटरेक्शन से जो स्टोरीज़ बाहर निकल कर आई है. जैसे हमें एक पता है कि वासुदेव कृष्णा जो थे वो मथुरा में बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट डीटी थे मथुरा रीजन के. तो टाइम टू टाइम जैसे कि मथुरा के जब मथुरा के प्रीस्ट या मर्चेंट्स दूसरी जगह गए, उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करी वगैरह, तो वो इनकी वर्शिप जो है वो बाकी पार्ट्स में भी स्प्रेड होने लगी. बिल्डिंग टेम्पल्स. तो इस टाइम तक जब तक स्तूपा जैसे कि जैसे सांची जब अपनी प्रेजेंट फॉर्म में एक्वायर हो रहे थे, पहले टेम्पल्स मतलब अराउंड द टाइम दैट द स्तूपास एट साइट्स such as Sanchi were acquiring their present form, the first temples to house images of gods and goddesses were also built. तो सांची जब बिल्ड हो रहे थे उसी टाइम पर अपने फर्स्ट टेम्पल्स भी बिल्ड हो रहे थे. सबसे अर्ली जो टेम्पल्स हैं उसमें एक छोटा सा रूम होता था जिसे कहते थे गर्भगृह. उसका एक सिंगल सा दरवाज़ा होता था. वर्शिपर को उस दरवाजे के एंटर होना था, अपनी डीटी को वर्शिप वगैरह देख के, नमस्ते वगैरह जो नमस्कार वगैरह करके, और फिर इस तरीके से एक छोटा सा टेम्पल स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता था. धीरे धीरे करके वो जो टेम्पल है वो बड़े बड़े टॉल स्ट्रक्चर्स में होने लगा जिनके कहते थे शिखरा. तो शिखरा में डेवलप होने लग गया और वो जो सेंट्रल श्राइन है उसके ऊपर बिल्ड होने लगा. देखिए जैसे यहाँ पर अ टेम्पल इन देवगढ़ उत्तर प्रदेश 5th सेंचुरी सी. अगर आप इसको देखोगे तो छोटा सा एक स्क्वायर रूम है, एक सिंगल गेटवे. यहाँ पर डीटी की वो रखते थे, मूर्ति रखते थे. यहाँ से वर्शिपर आए, अपने वर्शिप ऑफर करे, मतलब जो भी ऑफरिंग वगैरह करके फिर बाहर निकल जाए. धीरे धीरे करके ये टेम्पल्स जो है वो बड़े बड़े होने लगे. इसके ऊपर शिखर बिल्ड हो, मतलब इसी के ऊपर ऐसे शिखर बिल्ड होने लगे. उस और टेम्पल स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स होने लगे, डेकोरेट होने लगे, इलेबरेट और डिटेल्ड इंटीग्रेट कार्विंग्स, बड़े बड़े हॉल, गेटवेज, पिलर्स. धीरे धीरे करके यहाँ पे पानी की व्यवस्था होने लगी और आसपास दुकानें वगैरह ये सब चीज़ें. तो ये धीरे धीरे करके टेम्पल्स में ऐड होने लगे. यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रिमेन्स ऑफ द शिखरा एंड द एंट्रेंस टू द गर्भगृह. देखिए ये एंट्रेंस टू द गर्भगृह, रिमेन्स ऑफ शिखरा यहाँ पर हम देख सकते हैं. ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर बना हुआ है ये थोड़ा सा शायद टूट सा गया है, बट दिस इज द एविडेंस कि यहाँ पर ऊपर कुछ और शिखर वगैरह होता था. वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ अर्ली टेम्पल्स वाज सम ऑफ दीज वर होलोड आउट ऑफ ह्यूज रॉक एज आर्टिफिशियल केव्स. तो एक बहुत यूनिक फीचर होता था इन अर्ली टेम्पल्स का कि बड़े से पत्थर से काव कर करके, इसमें हॉलो कर करके आर्टिफिशियल सा केव बनाते थे और इस तरीके से इन टेम्पल्स को एक ही पत्थर से काव आउट करके बाहर बनाया जाता था. तो ये जो ट्रेडिशन था ये बहुत पुराना था और अर्लीस्ट ऑफ दीज वर कंस्ट्रक्टेड इन द 3rd सेंचुरी BCE ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अशोका, या फिर वो लोग जो कि आजीविका सेक्ट को बिलोंग करते थे. फॉर रिनाउंसर्स हु बिलोंग टू दी आजीविका सेक्ट, तो अशोका ने ऑर्डर दिया था कि इनके लिए ऐसे पूरे बड़े से पत्थर में से काव आउट करके आप एक टेम्पल बनाओ, एक केव, आर्टिफिशियल केव जैसे. देखिए ये एक स्कल्पचर है, विष्णु रिक्लाइनिंग ऑन दी सर्पेंट, शेषनाग स्कल्पचर फ्रॉम देवगढ़ उत्तर प्रदेश 5th सेंचुरी सी. ये भी देवगढ़ उत्तर प्रदेश 5th सेंचुरी सी है. एंड दिस टू देख सकते हैं आप कितना बड़ा बिल्कुल लाइफ साइज स्कल्पचर टाइप है एंड डिटेल्ड, एंड हाउ ब्यूटीफुल द स्कल्पचर इज. यहाँ पर ये फिगर्स देखिए, एंट्रेंस टू अ केव एट बराबर बिहार इन फ्रॉम 3rd सेंचुरी BC circa. एंड ये देखिए ये कैलाशनाथ टेम्पल. दिस ट्रेडिशन इवॉल्व थ्रू वेरियस स्टेजेस एंड कल्मिनेटेड मच लेटर इन द 8th सेंचुरी. मतलब 8th सेंचुरी के बाद फिर आते आते ये ख़त्म हो गया. जैसे कि पूरा के पूरा टेम्पल, जैसे कि कैलाशनाथ का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है. कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स द अमेजमेंट ऑफ द चीफ स्कल्प्टर आफ्टर ही कंप्लीटेड एट एलोरा. ओ हाउ डिड आई मेक इट. तो यहाँ पर ये स्टोरी बता रही है कि जो कैलाशनाथ का टेम्पल है एलोरा में, कैलाश इज़ अनदर नेम फॉर शिवा. तो एलोरा जो है, जो महाराष्ट्र में है, अजंता के पास में है, वहाँ पर एलोरा में जो ये वर्कर्स है, जब इन्होंने एक ही काव, एक ही रॉक में से पूरा काव आउट करा है. आप देखिए पूरा एक ही पत्थर था जिसमें अंदर हॉलो स्पेस बना है, पूरा मंदिर एक ही पत्थर में से इन्होंने कंस्ट्रक्ट करा है. तो जब ये बना था ना, तो ऐसे एक इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर कॉपर प्लेट में कि इसको बनाने वाले ने खुद ने बोला कि अरे मैंने ये कैसे बना लिया. तो आप देख सकते हैं दिस इज सच अमेजिंग थिंग कि पूरा के पूरा जो ये पूरा के पूरा जो स्ट्रक्चर है एक ही पत्थर, एक ही रॉक में से काव आउट होके बनाया है. कैन वी सी एवरीथिंग. अब तक हमने ग्लिम्स देख लिया है कि रिच विजुअल ट्रेडिशंस दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट, जो कि ब्रिक, स्टोन आर्किटेक्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर्स वगैरह में एग्जिस्ट करते थे, कितना वो था. हमने ये भी देख लिया है कि इनका कितने
कुछ कई डिस्ट्रॉय हो चुके हैं या कितना बचा हुआ है, ये सब चीज़ें। इसके अलावा जो भी चीज़ें बनी हुई हैं उनको प्रॉपर्ली हमने कन्वे हो पाए हैं, नहीं हो पाए हैं, मतलब प्रिजर्व हो पाए हैं। लेकिन जो भी कुछ बचा हुआ है ना, वो आर्टिस्ट, स्कल्प्टर्स, मेसन जिन्होंने भी इसको बनाया उसके एक सेंस को पोर्ट्रे करता है, कन्वे करता है कि वो क्या बताना चाहते थे। और हम ये ऑटोमेटिकली नहीं समझ सकते हैं, मतलब कैसे हम ये समझ सकते हैं, क्या हम पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि आज से 2000 साल पहले ये लोगों ने ये एक पर्टिकुलर चीज़ क्यों बनाई थी, कैसे, क्या मतलब था इसका। तो हम लोग कोशिश करते हैं ये समझने की, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि हम 100% उसका मीनिंग एक्यूरेटली समझ पाए। ग्रैपलिंग विद द अनफेमिलियर, इट विल बी यूजफुल टू रिकॉल दैट जब 19th सेंचुरी यूरोपियन स्कॉलर्स ने पहली बार इन गॉड्स एंड गॉडेसेस के स्कल्पचर देखे तो वो ये समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या है, वॉट वॉज देयर मीनिंग, क्योंकि वो तब तक टेक्सचुअल ट्रेडिशन से फेमिलियर नहीं थे जो टेक्स्ट में लिखा हुआ था। तो कभी कभी तो वो बहुत डर जाते कि जब वो इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स और इतने सारे आर्म्स और इतने सारे सिर और ऐसे सांप है और शेर है, शेर के ऊपर बैठे हुए हैं, इन सब चीज़ों को देखकर कभी कभी वो डर जाते थे कि कैसे ये, मतलब जैसे वराह अवतार हमने देखा तो आधा एनिमल आधा इंसान, तो इसको देखकर इतने बड़े साइज में वो डर जाते थे। ये जो अर्ली स्कॉलर थे ये इसका सेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे कि ये स्ट्रेंज चीज़ें, इसका क्या मतलब है फेमिलियर के साथ, जैसे कि ग्रीस में जो एंशिएंट गॉड वगैरह बनाए गए थे उसके साथ उसको कंपेयर करने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने ये देखा कि अर्ली इंडियन स्कल्पचर जो थे वो ग्रीक वर्क से इन्फीरियर थे। वो ऐसा मानते थे कि यार जो ग्रीक आर्टिस्ट का वर्क है ना, जो पहले एंशिएंट ग्रीक आर्टिस्ट का वर्क है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये जो इंडियन स्कल्पचर्स है ये तो इतने अच्छे नहीं हैं। बट फिर भी वो बहुत एक्साइटेड थे जब उन्हें बुद्धा और बोधिसत्तास का ये स्कल्पचर्स मिले। वो कैसे मिले, जो कि ग्रीक मॉडल्स के ऊपर बेस्ड होते थे। तो देवर फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट, जैसे तक्षशिला, अफगानिस्तान, पेशावर, पाकिस्तान वाले एरियाज़ में। ये इंडो ग्रीक रूलर्स जब थे ना, तो उनके टाइम पे उनके अंडर में, तब इसी वजह से जो जैसे ये बुद्धा एंड बोधिसत्तास के जो उस एरिया में मिले हैं स्कल्पचर्स, उस पर ग्रीक इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इमेजेस जो थे वो ग्रीक से आ चुके क्लोजेस्ट थे, तो ये स्कॉलर्स इनके साथ फेमिलियर थे। दे कंसिडर टू बी द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट। क्यों? सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये ग्रीक उससे फेमिलियर थे, ये सिमिलर थे। सो दिस इज़ ऑफ कोर्स अ रॉन्ग अप्रोच, बट वो लोग ऐसा सोचते थे। इस इफेक्ट में ये स्कॉलर्स जो थे उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जिसको हम समझाते हैं। उन्होंने डिवाइजिंग यार्ड स्टिक्स डिवाइड फ्रॉम द फेमिलियर टू मेक सेंस ऑफ द अनफेमिलियर, मतलब जिन चीज़ों के बारे में उन्हें नहीं पता था और जिस चीज़ों में बारे में पता था, तो जो पता था उसकी मदद से वो पता करने की कोशिश करते थे कि क्या हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में देखा कि अगर एक सैडल क्वन मिला तो आज हमें पता है कि उसका क्या यूज़ है, तो उससे वो रिलेट करते थे कि तब भी उसको इसी तरीके से यूज़ किया जाता था। ये बोधिसत्ता फ्रॉम गांधार, द क्लॉथ एंड हेयर स्टाइल, ये ग्रीक इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को। क्लॉथ भी देखिए स्टोन के ऊपर किस तरीके से कपड़े की प्लेट्स एंड पेयर एंड हाउ दीज थिंग्स हैव बीन ड्रॉन। इफ टेक्स्ट एंड इमेज डू नॉट मैच, एक और प्रॉब्लम है। हमने ये देखा है कि हिस्टोरियंस आर्ट को कैसे समझते हैं, टेक्स्ट की हेल्प से। टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है उससे फिर मेकआउट करते हैं कि अच्छा ये शलभंजिका है, गजलक्ष्मी है, या एलिफेंट का क्या मतलब है। तो ये तब तक ही वो है जब तक ये ज़्यादा बेटर स्ट्रैटेजी। अगर हम इंडियन इमेजेस को ग्रीक स्टैटूस के साथ कंपेयर करेंगे तो ये तो कोई स्ट्रैटेजी ऑफकोर्स फ्रूटफुल है ही नहीं, बिकॉज ग्रीक का कल्चर अलग, इंडियंस का कल्चर अलग। तो टेक्स्ट के थ्रू आर्ट को समझना इज़ ऑफकोर्स अ मच बेटर स्ट्रैटेजी, बट ये हमेशा ईजी टू यूज़ नहीं होता है। जैसे कि एक बहुत इंट्रिगिंग एग्जाम्पल है, ये एक फेमस स्कल्पचर है अलॉन्ग अ ह्यूज रॉक सरफेस इन महाबलीपुरम। दिस स्कल्पचर दिस अ वेरी वेरी ह्यूज रॉक स्कल्पचर महाबलीपुरम तमिलनाडु में। एक और हमने दुर्गा का देखा था ऊपर वाले में पेजेस में, इन तमिलनाडु महाबलीपुरम। तो अब ये वाला जो स्कल्पचर है, ओके, ये जो है एक विविड डिपिक्शन ऑफ स्टोरी, कोई ना कोई बहुत बड़ी स्टोरी को डिपिक्ट करता है। बहुत क्लियरली हमें दिखता है कि लोगों का मूवमेंट दिख रहा है, एक ही चीज़, मतलब ये हम मेकआउट कर सकते हैं यार ये एक ही पूरी स्टोरी का पार्ट है, ओके। लेकिन हम ये आइडेंटिफाई कर नहीं पाए हैं कि ये कौन सी स्टोरी है। इसके लिए हमारे पास दो स्टोरी टेक्स्ट में मिलती है। ये स्टोरी या तो वो है कि डिपिक्ट्स द डिसेंट ऑफ द रिवर गंगा फ्रॉम हेवन, द नेचुरल क्लेफ्ट टू द सेंटर ऑफ द रॉक सरफेस माइट रिप्रेजेंट द रिवर। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गंगा जो है वो जब आसमान से, स्वर्ग से नीचे धरती पर आई थी, तो ये जो दिख रहा है ना, ये बोलते हैं कि ये इस तरीके से फिर नीचे बह रही थी, और ये उस स्टोरी का डिपिक्शन है कि जब गंगा आसमान से धरती पर बहने नीचे आई थी। दूसरा एक और इसका बोलते हैं कि ये जो स्टोरी ऑफ कोर्स पुराणों वगैरह में लिखी गई है,
कुछ लोगों को लगता है कि ये स्टोरी जो है वो महाभारत के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें अर्जुन जो है वो पेनेंस कर रहे हैं रिवर बैंक के पास में, ताकि वो शक्ति, ताकत, वेपन्स वगैरह पा सके, पॉइंटिंग टू द सेंट्रल फिगर ऑफ एन एसेटिक। तो एसेटिक का एक सेंट्रल सा फिगर आई गेस यहाँ पर है, ये देखिए कि यहाँ पर अर्जुन जो है वो फॉरेस्ट वगैरह में जाकर बहुत ही मेडिटेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ताकि उनको शक्ति मिल सके, लॉर्ड्स की ब्लेसिंग्स मिल सके। तो अब देखिए, ये बात तो है कि हमें टेक्स्ट से आर्ट समझते हैं, बट अब इस केस में ये दोनों ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक्चुअल में किस चीज़ के लिए, what is the real meaning of this art. So it is not always easy to use text for the art purposes. Finally, ये याद रखना, many rituals, religious beliefs and practices were not recorded in a permanent visible form. मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का हमें एक मॉन्यूमेंट के फॉर्म में, स्कल्पचर के फॉर्म में उसका रिकॉर्ड मिले ही सही, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेली प्रैक्टिसेस या फिर स्पेशल ओकेजन से जो एसोसिएटेड, ज़रूरी नहीं है सभी का हमें स्कल्पचर्स में डिपिक्शन मिले ही सही। बहुत कम्युनिटीज़, लोग ऐसे थे जिनको ऐसा लगा होगा कि यार देखो, जैसे मैनी कम्युनिटीज़ एंड पीपल्स मे नॉट हैव फेल्ट द नीड फॉर कीपिंग लास्टिंग रिकॉर्ड्स इवन एज दे मे हैव हैड वाइब्रेंट ट्रेडिशंस ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज़ एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज। In fact, the spectacular instances we have focused on this chapter are just the tip of the iceberg. ये तो सिर्फ कुछ है, हमें इतने हज़ारों लाखों ऐसी और चीज़ें हमें पता है और हमें मिली है। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो आज हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट हुई होगी वो लोगों ने उसको रिकॉर्ड की होगी या ऐसे स्टोन स्कल्पचर में उसको पुट किया होगा जिससे वो इतने लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सके। ये टाइमलाइंस क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। एवरी वर्ड इन दी एनसीईआरटी इज इम्पॉर्टेंट इंक्लूडिंग द टाइमलाइन। Major religious development 1500 to 1000 BC, early Vedic tradition 1000 to 500 BC, later Vedic traditions 6th century BC, early Upanishads, Jainism, Buddhism 3rd century BC, first stupas 2nd century BC onwards, development of Mahayana Buddhism, Vaishnavism, Shaivism and goddess cults 3rd century CE, earliest temples। अब ये प्रेजर्वेशन ऑफ अर्ली मॉन्यूमेंट्स एंड स्कल्पचर की टाइमलाइन है। 1814 में फाउंडिंग ऑफ द इंडियन म्यूजियम कैलकाटा, 1834 में पब्लिकेशन ऑफ एसे ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज बाय रामराज कनिंगम एक्सप्लोर्स द स्तूपा एट सारनाथ। 1835 to 1842 जेम्स फर्गुसन सर्वेज मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट्स। 1851 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास। 1854 में अलेक्जेंडर कनिंगम पब्लिशेस भीलसा टोप्स, वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स ऑन सांची। 1878 में राजेंद्र लाल मित्रा पब्लिशेस बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ साक्या मुनि। साक्या मुनि क्योंकि बुद्धा बिलोंग टू अ साक्या क्लैन, राइट। तो साक्या मुनि, मुनि वी नो कि साधु मुनि, सो बुद्ध गया मतलब बुद्धा के ऊपर ही एक वो है। 1880 में एच कोल अपॉइंटेड क्यूरेटर ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। 1888 में पासिंग द ट्रेजर ट्रूव एक्ट giving the government the right to acquire all objects of archaeological interest। 20th century में 1914 में जॉन मार्शल एंड एल्फ्रेड फाउचर पब्लिश द मॉन्यूमेंट्स ऑफ साची। 1923 में जॉन मार्शल पब्लिशेस द कंजर्वेशन मैनुअल। 1955 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली एंड 1989 में साची डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट।